important areas. So hello everyone. This is the fourth session in our GS Masterclass series, and today we will be discussing the various of GS paper 3, how to go about the paper, what should be the approach, answer writing tips, and I'll be sharing various insights on the same. So before we begin, anyone want to discuss or interact or ask something with respect to whatever we have discussed till now? Nothing. How's the main preparation going? By the way, how many tests you have written? Anyone who would like to answer? Sir, if I may. 5. GS only, not GS and optional put together. GS only or optional only? 2 for GS. Okay. Okay. July. Okay. We are 25. Okay. Sahil 6. You have written 6 GS papers till now. सेक्शनल लिख रहे हैं सब लोग. अच्छा 2 ऐसे 2 GS 2 ऑप्शनल. तो GS के 2 ही है, 2 ऑप्शनल के. आई थिंक फाइन. मे बी end of next month you would be been written 8 around 8 tests, 5-6 more. ठीक है. And are you people writing sectional test or full test? Full test. Okay. With specific reasons, Sahil, why full test and why not sectional? Something in chat. Sectional daily answer writing 5 column. Okay. Okay. But still writing full 3 hours of sectional makes sense क्योंकि आप थोड़ा revision ठीक कर लेते हो. But no problem. मतलब whatever way you feel like. But the idea is to cover all the topics and not leave anything behind. Even if it means you have to complete and study internal security, disaster and all. So that is the idea and you should be doing it. So, ठीक है. So anyone else want to say, interact, share anything? Nothing. Okay. So, ठीक है. So let us begin. This is the fourth session, and we will be talking about GS paper 3 today, which consists of economy, internal security, disaster management, science, environment, and we will be discussing how to approach this topic. And it is in continuation of our other lectures and sessions which were there on GS1 and GS2 earlier. So today we'll be talking about GS3. So let us begin. So before we start, am I audible? Am I visible clearly? I think I'm not be visible now, but Yes, Abhinav. This we can see you and loud and clear. ठीक है. Perfect.
So yeah, this is the agenda for today. We will be talking about GS paper 3, and it is part of our masterclass series. And yeah, so GS3 by far consists of most diverse and most number of topics as far as the depth is also concerned, like internal security, economy, disaster, environment, science and tech. So after GS paper 1, which is having the next highest number of subjects, GS paper 3 is by far the most, I would say, versatile paper, and that is visible in the its description also. So before you go into the answer writing, it is very important for you to make 1 or 2 page notes of every keyword. And good part about GS3 is, uh, even though it is most versatile and dynamic topic, the syllabus of GS3 is most objective as compared to any other paper which we have. So for GS1 2 it's still slightly vague. जब वो पोस्ट इंडिपेंडेंस लिख देते हैं तो आप पढ़ो क्या पढ़ना है. एंशियंट हिस्ट्री में आर्ट, लिटरेचर, लिटरेट फॉर्म्स, so वो you have to somewhere narrow down yourself what to study. But good part is, for most of the GS paper 3 you have defined area which you need to study about, and that is what you should be very much confined to and focused about. Because most of the students tend to study extra and which is not related to what is required for the UPSC, and they end up not studying what is required for UPSC. I'll be coming about it in the next part also. So yeah, so and then you have to do revision for all no notes which you have done, and do the PYQs, because somewhere topics gets repeated. Yeah, and answer writing tips will be, yes, you have to do, sorry, you have to do the introduction, body and conclusion, and therein you have to write your answer by understanding the demand, which I mean is to write each address, reach each part of the question properly and separately, with subheadings of your points and subcategorization of your points. That is how you will do it. uh, so again, ठीक है. So if you see, starting with economy, the syllabus of paper 3, I have noted down few of the keywords directly from the syllabus. Like it is mentioned public distribution system, what are its objectives, functioning, limitation, and revamping. So UPSC has themselves given you 4 of the focus areas which you need to study while you are studying this topic, and this is how you need to study. What is the objective of PDS? What is the functioning of PDS? What are the limitations of PDS? How you will revamp PDS? Revamping PDS is basically means way ahead and things to do for improvements, or way ahead. Here you will talk about various committees, like we have Shanta Kumar committee. If I'm not wrong, this is the committee. And functioning, you will talk about what is the role of PDS. Limitations, now that is where you will do your homework and try to be innovative, is make your limitations with subcategories of points, as in structural limitations of it, administrative limitations of it, uh, functional limitations of it, right? In that fashion, write sub points of each and then try to memorize. So if you do this homework, then you will be very comfortable if there is any question on PDS. अगर नहीं करोगे तो हमेशा you will be in the doldrum कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है. So it is very important to do it. So unfortunately, like polity, we have Lakshmikant, but we don't have any such standard book in economy. But at least we know what to study. So do Google search, try to study few articles on PDS. There is a good plethora of material available on internet, various coaching institutes and other reference material is there, but try to restrict yourself with respect to these subheadings that you have to do for every topic which is mentioned in the syllabus. And that is why I'm saying it is the beauty of GS3 की subjective syllabus बहुत objective है. तो उन उसके ऊपर फोकस करो. डोंट गो विद वर्बेटिम जो टॉपिक, जैसे शुरू में इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है तो अब इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ोगे, इतना कंफ्यूज मत हो. एटलीस्ट जो ऑब्जेक्टिव चीजें दी हुई है पहले उनको ढंग से करो. मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगेन गो विद द डेफिनेशन, इसका पर्पस क्या है, बफर स्टॉक क्या है, गो विद फैक्ट्स, गो विद its limitation issues. Same goes for economics of animal rearing, land reforms.
food processing is very very important, very important topic, because it is being repeated many a times, और इन्हीं issues के around आता है. अब ये सब headings दिए हुए हैं, इन्हीं सब headings के around you have to study. What is its scope? What is its significance? What is its location? So scope and significance में भी फर्क है, मतलब it's slightly technical in nature, but you should be having understanding about it. What are the upstream and downstream requirements of food processing, supply chain management of food processing, and infrastructure is इन सब issues के बारे में पढ़ना. ठीक है? So this is the part of economy which you need to do, what to study and how to study. So if you go for the answer writing, introduction, जो भी कीवर्ड पूछा गया है, if it's about PDS, if it's about food processing or minimum support price or Indian economy or GDP, like the question was today, so it's good to start it either with the definition or any fact related to it or any current affair happening has happened. For example, if the question is on, let's say, buffer stock, so I can start with fact कि इंडिया का buffer stock जो है वो कितना sanctioned कितना होता है, but we have somewhere around 3 to 4 times of the actual theoretical limit which we have defined for us. So that is how you can start with fact. You can put the number around it, or you can start with definition. MSP पे question है तो what is the definition of MSP, right? What is it? So, or you can start with current affairs. If there is any question on agriculture in general, so you can start with the context of farmer bills, protest, and the agitation which was attached to it, and what was it, agriculture bills or farmer laws. So that's how you can give the context. If you see a few questions around it which have been asked in past year UPSC, like 2018, the question was directly in the same line. What do you mean by MSP? How will MSP rescue the farmers from the low income trap? तो दो पार्ट्स यूपीएससी ने पूछे हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है, और इसमें ये तो सीधा आपकी डेफिनेशन ही है, तो आप इसी से स्टार्ट करो ना. पहला पार्ट तो आपका इंट्रोडक्शन में ही हेल्प हो जाएगा. सिंस एक अलग से पूछा हुआ है तो इसके बाद थोड़ा और इलेबोरेट कर देना एमएसपी को, कि एमएसपी यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन लिखने के साथ साथ गिव सम बेसिक्स ऑल्सो, कि हमारे यहाँ कितनी क्रॉप्स पे एमएसपी दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, वो A2 प्लस FL, वो C2 वाला वो कंसेप्ट बताओ, क्योंकि क्वेश्चन इतना पूछा है मीन बाय में, वरना इतना लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये पूरा फर्स्ट पार्ट बनेगा. फिर सेकंड पार्ट में टॉक अबाउट हाउ इट विल हेल्प यू लो इनकम ट्रैप, तो वो आप इसके बेनिफिट्स में बताओ ऑफ एमएसपी. एग्जामिन द रोल ऑफ सुपरमार्केट्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. गुड वे टू स्टार्ट वुड बी कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है यही बताओ. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. और यू कैन यूज फैक्ट. इंडिया में बोलते हैं कि again I don't remember the exact number, but it is being said whatever is being produced in Australia उतना तो हमारे यहाँ वेस्ट हो जाता है in supply chain management. So obviously you can go around and search for the exact number for it, but this is a fact, so you can use it fact, and which shows that we need to work on our supply chain management system. तो उसके बाद फिर आप बोलो supermarket in this context plays a very important role and thus will help in improving our addressing the hunger and productivity issues. फिर उसके बाद अपना आंसर elaborate कर दो. तो वहां से कर सकते हो आप. फूड वेस्टेज के फैक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, या हंगर के फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, एंड फिर एलिमिनेट कैसे करते हैं इंटरमीडियरीज, इसके बारे में बात करो. तो दोनों पार्ट को एड्रेस करना है. वी हैव अ सब टॉपिक ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन द सिलेबस. हाउ and to what extent would micro irrigation help solve India's water crisis? So either you can start with water crisis problem, fact कि India it is being, नीति आयोग की रिपोर्ट बोलती है in next few years 20 cities will go what will face day zero. This is a report which is saying. तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो आप. और you can talk about कैसे हमारे 50% almost 50% agriculture is still rain dependent, so we don't have water availability. Rain dependent. Right, and then you can talk about what is micro irrigation, how it will do, and then talk about what is to what extent, which essentially means be able to do solve certain problem, but it will not be panacea because some issues will still remain. So ideally there will be 3 parts to the question, कि वो extent कितनी है, कि मतलब let's say ये हमारी full journey है of providing water crisis, उसमें
micro irrigation will be able to help us achieve till this location only and this will be remaining pending. तो ये extent जो है ये gap रह जाएगा. तो ये एक अलग part है जो इस question का है, which you need to write when you are writing. और ये this was the question of this year only. Right? Everyone with me till now? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So this is how you need to understand the demand of the question and start your answers. When you write your body, so incidentally in GS3 most of the time it will happen कि question के different subparts होंगे. Like we have seen this in this part कि एटलीस्ट दो तो पार्ट है ही हर एक क्वेश्चन के. डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे बचाएगा, रोल ऑफ क्या है, फिर वो इंटरमीडिएट्स को कैसे सॉल्व करेगा, और इसमें तो 3 सब है. तो दिस इज गुड अबाउट GS3 कि आपको वो नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं. तो इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कितने पार्ट्स हैं सो दैट यू कैन गिव एडिक्वेट अटेंशन टू ईच पार्ट. वो और उन्हीं को यूज करके आप अपने हेडिंग्स बनाओ. जैसे इस क्वेश्चन में आप इसी को यूज करोगे, माइक्रो इरिगेशन विल हेल्प solving India water crisis. फिर बताओ the extent to which it will help, the extent to which it will not help. ये 3 सब हेडिंग हो जाएंगी और इसके अंदर अपना आंसर लिखो. Again, many people might say कि यार बहुत सारे सब पार्ट्स है तो यार बहुत लिखना पड़ता है. I personally feel more the parts merrier it is, because मेरे लिए फिर हर एक पार्ट में एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही लिखनी पड़ेगी. प्रॉब्लम तब आती है जब हमें एक ही पार्ट में 6-6, 7-7 पॉइंट, एटलीस्ट फॉर मी दैट वाज द केस. यार मैं 10 पॉइंट कैसे लिखूं या 8 पॉइंट कैसे लिखूं एक पार्ट में. 3-4 पॉइंट लिखना इज फाइन. एंड अगर स्ट्रक्चर्ड होता है आंसर में, तो अगर दिस इज योर 2 पेजेस ऑफ योर आंसर एंड हियर इट इज विजिबल, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, एंड यू हैव रिटन इट एवरीथिंग प्रॉपरली. तो मतलब इतना पहले तो एग्जामिनर ही आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही उसको समझ में आ जाता है कि यार बंदे को क्वेश्चन की पकड़ हो गई है. अब अंदर वो पॉइंट्स देखता है तो ठीक है यार, क्वालिटी के बेसिस पे वो मुझे 6 की जगह 5 दे देगा या 4.5 दे देगा, वट एवर, देन इट इज हिज विश. बट एटलीस्ट स्ट्रक्चरली स्पीकिंग वो मुझे 4-4.5 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आई हैव मेट द स्ट्रक्चरल डिमांड. उसके बाद थोड़ा तो ऑब्वियसली व्हेन यू स्टडी एंड हैव द कंटेंट, तो आप अपना आंसर बेटर कर सकते. तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव many parts in the question. Don't be afraid of it. That is the whole intention. And while you are writing your answer, as I mentioned before, try to give subcategorization to your points. It again adds value. Like I talked about limitations of PDS, so write structural issues and then write administrative issues and then write, and then that's how your even further answer beautification comes, and it looks further more innovative in other way. Because नहीं तो क्या होता है, लोग जनरल लिख के आ जाते हैं. पर अगर आपको सपोज MSME का क्वेश्चन आता है और आपने फूड प्रोसेसिंग में पढ़ा है कि अपस्ट्रीम प्रॉब्लम क्या होते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम क्या होते हैं, या फॉरवर्ड इश्यूज क्या है, बैकवर्ड लिंकेजेस में इशू क्या है, तो उसी तरह से इश्यूज के सब कैटेगरी कर दो कि बैकवर्ड लिंकेजेस में क्या इश्यूज है. दिस इज द फर्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग, सब कैटेगराइजेशन, और उसके अंदर 3-4 पॉइंट लिखो. फिर लिखो फॉरवर्ड लिंकेज में क्या प्रॉब्लम है. फिर सब पॉइंट्स ऑलमोस्ट सब सेम होते हैं. सबको पता है यार उनके पास फंडिंग नहीं है, मैन पावर नहीं है, स्किल नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, लॉस बहुत ज्यादा है. तो बट प्रेजेंटिंग इट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर adds value to your answer. This is the point. And whenever you write in conclusion or way ahead, give a concluding remark with respect to an optimistic view. Whatever government initiatives are in that direction, any best practices which you have heard, like for self-help, for this agriculture, in millets, another crop, there is sister millet network which is there. So if there is any question on talking about diversification of crops, so you can talk about it in way ahead or best practice कि कैसे हम millets को promote कर रहे हैं. जिससे अब इसी example को आप paper 2 में self help group में use कर सकते हो. इसी example को आप काफी जगह use कर सकते हो, women empowerment में use कर सकते हो. But so that's your skill, how you use it. So I talked about government initiatives. We have food processing में संपदा program, जिसमें वो एक बड़ा सा diagram आता है, वेरियस CPC है, जिससे सीप यहाँ पे आता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर इधर उधर जाता है. तो वो डायग्राम बना के आओ फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन में. वो तो बिल्कुल बनाना है, दैट इज मस्ट. उसके बिना तो कोई फूड प्रोसेसिंग का आंसर बनेगा ही नहीं. तो वो याद कर लो, बनाना जल्दी बनाना सीख लो, कैसे जल्दी बना सकते हो उसको. राइट. So this is how you need to approach economy in toto. Now
someone asked me, and I have also kept it in my slide, is about how to tackle the unknown. GS3 में एक another type of gray area होता है कि जब हमारे पास unknown question आ जाते हैं जिसकी हमें idea नहीं है. It's more so in S&T, environment and others, but it is also in economy. Like we have seen in the case of this year and last year, the difference between computing methodology of GDP before 15 and after 2015. Or define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting from realizing its potential? तो अब यार देखो, ऐसे में सबसे पहले तो है कि यार स्ट्रक्चरल डिमांड मीट करनी है. एटलीस्ट स्ट्रक्चरली आंसर में उसको सारे पार्ट्स दिख जाए. मतलब एक मेरे आंसर में ये हेडिंग होनी चाहिए, कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ जीडीपी, जिसके बारे में मैं कुछ लिखूंगा. क्या लिखूंगा वो बात की बात है. सेम इस क्वेश्चन में एक होना चाहिए, पोटेंशियल जीडीपी इज समथिंग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी, उसमें 2-3 पॉइंट, फैक्टर्स इनहिबिटिंग इंडिया, उसके अंदर 3-4 पॉइंट. तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चरल डिमांड मीट करनी है, ठीक है. उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में जो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज है उसको यूज करो और उसको क्वेश्चन से एज मच एज पॉसिबल रिलेट करने की कोशिश करो. उसको बस ऐसे लिख के मत छोड़ दो. फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जीडीपी का जो बेसिक्स कंसेप्ट होता है, C + I + G + X - M, ऐसा कुछ जो फॉर्मूला होता है, और भी तरीके होते हैं, वैल्यू एडिशन इन ईच सेक्टर, वो एक अलग तरीका होता है. तो जो भी आपको बेसिक नॉलेज आती है उसके बारे में लिख के थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के फिर इससे रिलेट करने की कोशिश करो कि कैसे हमने पहले और बाद में थोड़ा बहुत चेंज किया होगा. कि इतना तो सबको पता है ना, हमने थोड़ा सा सेक्टर वाइज देखते हैं तो हमने सेक्टर में एलोकेशन डिफरेंट कर दिया, तो इसीलिए हमारी ओवरऑल जीडीपी की रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई. कुछ सेक्टर जो पहले आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर में आते थे उनमें सर्विस में ले लिया, या अदर वेज राउंड, समथिंग वाज डन. सो आई डिडंट नो इट परफेक्टली व्हेन आई वाज राइटिंग द आंसर, तो मैंने भी ऐसे ही लिखा था, समवेयर ट्राई टू लिंक इट. मतलब प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को एज इज लिख के और सोचते हैं एग्जामिनर खुद ही समझ जाए. जिस एक्सटेंट तक हो सके तो लिंक करने की कोशिश करो हर पॉइंट को मेथोडोलॉजी से. यार मेथोडोलॉजी में चेंजेस लाए और नई डेटा यूज करी, जो पहले का डेटा यूज करते थे उसकी जगह बेस ईयर चेंज किया. तो ऐसी चीजें लिखो विच आर लिंक टू मेथोडोलॉजी. बेसिक नॉलेज ही है जो मतलब मोस्टली यू पीपल वुड बी नोइंग. सिमिलर गोज फॉर दिस कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं. पोटेंशियल मतलब जीडीपी एक कंट्री जो अचीव करना चाहेगी, जो उसका पोटेंशियल है, जो बन, तो वो पोटेंशियल जीडीपी हो गया. और वो कैसे बनेगी, डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, क्यों हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, ये तो अदर जेनेरिक क्वेश्चन ही हो गया. ये तो अलग वैसे भी लिख दोगे कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉब्लम्स है कि एग्रीकल्चर इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या इश्यूज है, सर्विस सेक्टर में क्या इश्यूज है, इस तरह करके अलग अलग के 2-3 इशू लिखोगे तो ये पार्ट तो वैसे ही एड्रेस हो जाएगा. इसके लिए थोड़ा बहुत और बेसिक नॉलेज को यूज कर लो. डिटर्मिनेंट्स में इन्हीं से ही यूज करके डिटर्मिनेंट्स भी बता सकते हो आप. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू डोंट नो एनी क्वेश्चन तो कैसे उसको एड्रेस करना है. स्ट्रक्चरल डिमांड लेनी है, मीट करनी है, फिर कंसेप्चुअल बेसिक नॉलेज एक्सप्रेस करना है, सो दैट द एग्जामिनर नोज कि यू नो द बेसिक्स. फिर उसको बेसिक्स को लिंक करना है एज पर व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. So this is the approach for tackling the unknown for economy. Clear? Yes, sir. एक दो चीजें देख लेते हैं इसमें. अच्छा, इसको ऐसे करना पड़ेगा. तो यार ये जैसे एग्रीकल्चर में बेसिक डेटा हाउ आई हैव कोलेटेड इज, एक थोड़ा सा डेफिनेशन लिख सकते हो आप कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे से ही लिखा हुआ है ये सब चीजें. इट इज अ बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी. कितना जीडीपी का परसेंटेज है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, उसका ट्रेंड. मेरा ट्रेंड थोड़ा बहुत पुराना है 12 से, आप एक ट्रेंड बना के रख सकते हो. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी. आपके पास ट्रेंड्स होने चाहिए, है ना. तो ऐसे ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेंड्स ऑफ कोविड के बाद से सब में डाउन आया, तो वो वाला ट्रेंड तो डेफिनेटली होना चाहिए.
सो few points are very important here. जैसे एग्रीकल्चर का क्या ट्रेंड है, जीडीपी ओवरऑल का क्या ट्रेंड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या ट्रेंड है, सर्विस सेक्टर का क्या ट्रेंड है, ये 4 ट्रेंड तो आपके पास होनी चाहिए टिल डेट। अभी आज की डेट में 2021 22 तक क्या सीन है उसका, तो ये ट्रेंड रखो, ये हमेशा हैंडी रहते हैं अलग अलग सिचुएशन में। हमारे प्लस इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है, सीपीआई के थ्रू जो हम देखते हैं, तो वो किस रेंज में चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद बेसिक कुछ कीवर्ड्स लिख दिए, हमारा इशू क्या है, एंड देन हियर आई एम टॉक्ड अबाउट कमिटीज, what are various committees which are attached to agriculture and few schemes. This is broader level. फिर overall culture को again production and post production. So this is post production is broadly the supply chain and marketing. Here it is the pre-production related thing, sowing and harvesting. इसमें क्या issues है, इसमें क्या points आते हैं जो just for me to have an idea. Whenever I'm writing about production related, so land reforms is also one thing which I need to focus about. Technology, manpower, fertilizer, seeds, irrigation. So अंदर के points तो obviously आप और depth में अलग अलग लिखोगे ही, but this is for broader level understanding. ठीक है। अब एक क्वेश्चन था एमएसपी में कैसे वो लो इनकम ट्रैप से बचा सकता है, तो अपने नोट्स में ऐसी 2-4 चीजें बना लो। लो इनकम ट्रैप क्या मतलब होता है, इनकम कम है तो लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इट मींस लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्शन मींस लो प्राइस रियलाइजेशन इन मार्केट, लो प्राइस रियलाइजेशन मार्केट मींस अगेन लो इनकम, तो लो इनकम ट्रैप हो गया ना। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएसपी कैसे बचाएगा, तो सही है, बता दो फिर कैसे बचाएगा। ये जो आपकी साइकिल है इसी में बता दो। एमएसपी जो है वो आपके इस पार्ट को एड्रेस करेगा, दिस प्राइस रियलाइजेशन को। तो यहाँ पर एड्रेस करने से ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ जाएगी, उससे पूरी साइकिल चेंज हो जाएगी। तो कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिखती है आपके ऐसे डायग्राम बना के आंसर लिखने में, और इनोवेटिव भी है। इट विल सेव योर टाइम एंड स्पेस एज वेल एंड इट विल बी वेरी कम्युनिकेटिव। तो इस तरह से लिखो आंसर और इस तरह से रिलेट करना है। दैट इज हाउ यू नीड टू प्रेजेंट योर नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अगेन एंड अगेन आई हैव बीन रीएम्फसाइजिंग दिस पॉइंट कि आपको हमेशा नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन डिमांड लिखनी है, नॉट प्रेजेंटिंग योर नॉलेज एज इज व्हाट यू नो। सो दैट इज हाउ यू नीड टू लिंक। ऐसे ही सुसाइड ट्रैप होता है, ऐसे ही इंडेप्थनेस ट्रैप होता है, सब मोटा मोटी सेम ही होता है कि सुसाइड होंगे तो लो इनकम की वजह से एंड ऑल दिस थिंग। सी ऑफ दिस minimum support price have a definition, proper definition, have some basic facts around it। जो मैंने बताया था ना आपको कि अगर definition what do you mean by MSP आता है तो इस तरह से मैं total लिखूंगा। This is how I will write, and then some committee around it which have talked about MSP। नीति आयोग का मॉडल है, there's a scheme around it and what it is basically। So that is how you have to make your conceptual clarity with respect to MSP। फिर इसके issues लिखो, what are issues with respect to MSP। इसके थोड़े सब कैटेगराइजेशन करे हुए हैं, तो जिससे मुझे याद रहने में। इश्यूज क्या होते हैं, एग्रीकल्चर माल प्रैक्टिस होती है, बिकॉज इट लीड्स टू माल प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको पता है वीट एंड राइस पे मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं बस वीट एंड राइस ही उगाता रहता हूँ, तो इट मेक योर एग्रीकल्चर मोनोक्रॉपिक इन नेचर, और आप इनपुट रिसोर्सेज को बहुत ही ब्लेटेंटली यूज करने लग जाते हो, तो वाटर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड माल प्रैक्टिस है बिकॉज ऑफ एमएसपी। फिर मॉनेटरी बर्डन आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इसकी वजह से डिस्पैरिटी बढ़ रही है क्योंकि कुछ ही क्रॉप्स तक रिलेटेड है, कुछ ही एरियाज तक रिलेटेड है। तो मतलब बेसिक नॉलेज वही है, बट आई हैव समवेयर सब कैटेगराइज्ड इट इन द सेंस टू मेक माय लर्निंग प्रोसेस इजियर एंड मेक माय आंसर प्रेजेंटेशन आल्सो डिफरेंट। फिर ओवरऑल इसमें एमएसपी में पॉलिसी इश्यूज भी हैं कि देयर इज नो लीगल बैकिंग, कैलकुलेशन ऑफ एमएसपी इज नॉट not very clear and not very is not a consensus driven approach कि क्या करना है, तो वो सब चीजें इश्यूज हैं, सारे लिख लो। अब इतनी डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स अगर आपके होंगे तो फिर एमएसपी के आंसर में क्या बच जाएगा बताओ, अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है वो भी, तो इस तरह से लिखना है यार। ठीक है, एक दो चीज और देख लेते हैं।
ये अभी बेटर है या लैंडस्केप में बेटर है? कैन एनीवन जस्ट हेल्प मी गिव फीडबैक? सर This is better. लैंडस्केप विल बी बेटर। अभी अभी से बेटर अब ये है। इज दिस बेटर? इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? सर ऐसे थोड़ा जूम करेंगे तो थोड़ा पढ़ना इजी रहता है बस। ठीक है। तो यार अगेन जैसे सब्सिडीज आपका पॉइंट, इज इट बेटर नाउ? Yes, sir. It is better. Yes, तो sir. सब्सिडी है तो क्या उसका कंसेप्ट है? व्हाट इज द रैशनैलिटी बिहाइंड इट? देयर आर सर्टेन indirect subsidies which are mentioned in the left side, issues with them, and there are certain direct subsidies, उसके रिगार्डिंग क्या इश्यूज होते हैं। तो आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए डायरेक्ट सब्सिडी का क्या मतलब है। जैसे हम एमएसपी में देते हैं, पीडीएस वाले मैकेनिज्म में, एमएसपी में जो पीडीएस प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम है, दैट इज डायरेक्ट। और फर्टिलाइजर इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट होती है जो काइंड में दी है, जैसे पावर की, वाटर की, फ्यूल वाली सब्सिडी जो है, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इस तरह से थोड़ा सा अब क्वेश्चन अगर पावर सब्सिडी के ऊपर आएगा तो जो मेरे को इनडायरेक्ट के पॉइंट्स आते हैं मैं वही लिखूंगा। अगर क्वेश्चन एमएसपी के ऊपर आ रहा है तो फिर मैं जो डायरेक्ट सब्सिडी वाले पॉइंट्स है वो लिख दूंगा, क्योंकि समवेयर इश्यूज ऑलमोस्ट सेम होंगे। यू नीड टू डू इट। थोड़ा हर एक इशू के रिगार्डिंग थोड़े फैक्ट्स लिख लो। फर्टिलाइजर में हमारे पास आइडियल क्या होना चाहिए बट रियल क्या है। आई थिंक ये और भी बढ़ गया है, 7:3 नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसके क्या, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं। सेम गोज फॉर सीड। सीड का एक बेसिक्स है, अलग अलग लेवल की सीड्स होता है। इसके रिगार्डिंग देयर आर फ्यू टेक्निकल टर्म्स ऑफ सीड रिप्लेसमेंट रेशियो ऑल्सो। तो गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है, तो इस विलेज बैंक एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इस तरह से आप कर सकते हो यार। ठीक है। इकोनॉमी में मैं एक और चीज दिखाऊंगा आपको। हाँ, जैसे ये पीडीएस का है। आई वाज मेंशनिंग अबाउट पीडीएस। देखो पीडीएस के लिए क्या बेसिक्स है पीडीएस का, कहाँ पीडीएस इंटरवीन करता है। फार्मर होता है, वहां से एमएसपी जाता है, एफसीआई क्रॉप्स लेता है, फिर फूड फिर प्राइस शॉप्स जाता है, वहां से कंज्यूमर में जाता है। अब इसमें इस पूरे साइकिल में पीडीएस है। ये पूरा साइकिल पीडीएस शो कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस एंड मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस। इस तरह से थोड़ा इसके टाइमलाइन क्या है। फंक्शनल अगेन वही जो ऊपर लिखा है उसी को मैंने लिख दिया। तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पीडीएस। इसके इश्यूज फिर अगेन आप कैटेगराइज। अब ये फूड फूड प्रोसेसिंग है तो इसके बारे में डेफिनेशन लिख दिया बॉटम में। इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू फूड और फूड इनटू अदर फॉर्म्स। तो इसमें बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल ले लो। जैसे पैडी है, पैडी से आप राइस बना सकते हो, या लेफ्ट ओवर से जो हस्क आता है उससे ऑयल बना सकते हो। तो दिस इज हाउ। शुगर केन है तो उससे जैगरी में जा रहा है, या इथेनॉल से बगास से बन रहा है पावर जनरेशन में। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से आप बता सकते हो। अब इसमें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सब कैटेगराइजेशन कर रखी है। फॉर फार्मर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे देखो, कंट्री लेवल पे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस तरह से अपने पॉइंट्स को आप माइंड में रख सकते हो। चैलेंजेस में अगेन जो मैंने जैसे बताया था, सप्लाई चेन के लिमिटेशंस क्या है, इनपुट साइड पे क्या कंस्ट्रेंट है। देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज कि हमारे स्मॉल साइड्स इंडस्ट्रीज होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेकुना है कि देयर आर मल्टीपल लेजिस्लेशंस, देयर इज हाई टैक्सेशन। मार्केट शॉर्टकमिंग्स इज कि डोमेस्टिक मार्केट इतनी मैच्योर नहीं है, प्राइसिंग इतनी अच्छी नहीं है, ब्रांड कॉम्पिटिटिवनेस है। अब ऑब्वियसली मतलब यहाँ मैंने 15-20 पॉइंट लिखे हुए होंगे, मुझे याद नहीं रहेंगे, बट दो दो पॉइंट भी याद रहेंगे तो मेरे 10 पॉइंट तो वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सब कैटेगराइजेशन है। तो यार थोड़ा इसीलिए थोड़ा बेटर होगा इस तरह से अगर आप अपने पॉइंट्स को बनाओगे तो। अपने पेपर में एक टॉपिक होता है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का, सिलेबस में, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स लिख लिए। ग्रोथ लेड क्या होता है, ऑटोनॉमिस क्या होता है। इतना स्पेसिफिक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इन केस अगर आ जाए तो थोड़ा
FDI क्वेश्चन आ जाता, मतलब आइडिया इज कि एलसी के सिलेबस वाइज चलो और उसी के हिसाब से बनाओ, तो यू वुड बी सीइंग द कोहेरेंस इन व्हाट आई वाज सेइंग एंड हाउ आई मेड माय सर्टेन नोट्स आल्सो, so that is how you need to approach paper 3. ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारे यहाँ रोड और रेल के बीच में डिफरेंस है. इफ यू सी द ग्राफ, दिस percentage of share in total fleet in 1950, 85% was by rail and 15% was road. But now in 2015, let's say, you can say 65% is by road and 25% is by rail. तो किस तरह से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं. एंड इफ यू सी द सेम एंड कंपेयर इट विद ग्लोबल, तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आप, चाइना में वाटर से कितना ज्यादा जाता है एंड सेम गोज फॉर यूएस में रेल से कितना ज्यादा जाता है, ऑलमोस्ट 50%. So that is how India is different from other countries, और इसकी वजह से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है. तो इस तरह से आप कर सकते हो. ठीक है, ये तो डिजास्टर है. ठीक है, इकोनॉमी डन. एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी कैसे करना है? कोई डाउट इकोनॉमी में? क्या हो गया यार? एम आई नॉट ऑडिबल? नो प्रॉब्लम सर, फ्रॉम माय साइड. समझ में आया या वाज इट सब ऊपर से चला गया? So can you explain the point of government budgeting if you have made any notes? यार मैंने सच सो बजटिंग में आई हैव रेफर्ड, मतलब यहाँ पर अभी नहीं है मेरे पास इसमें. उसमें बेसिकली आपको वही करना है कि हमारे एक रीसेंट कंटेक्स्ट तो उसमें वुमेन रिलेटेड बजटिंग का है, तो कि हमने कैसे वुमेन रिलेटेड अलग से बजट डालना शुरू कर दिया है. दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग. और उसमें एक वो कर सकते हो, देख मतलब पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट हैज नाउ जीरो बेस बजटिंग होता है. I'm forgetting the exact technical words around it, but जीरो बेस्ड बजटिंग होता है और एक टारगेट बेस्ड होता है, लाइन बजटिंग होता है. आई थिंक इफ आई एम एबल टू रिकॉल इट करेक्टली. तो ये सारे एस्पेक्ट जो होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए. लाइन बजटिंग होता है कि हम हर एक हमारे पास लाइंस डिफाइंड होते हैं, उस लाइन एज इन एरियाज, कि लेट्स से एग्रीकल्चर में कितना देना है, वाटर में वाटर, एजुकेशन, ये सारे लाइन है, और हेल्थ है, और इसमें हम बस फंड अलॉट करते चले जाएंगे. जीरो बेस्ड होता है कि हम इसमें जो पिछली बार फंड दिया था उसके बेसिस पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि उसको जीरो कंसीडर करेंगे, और हर एक लाइन आइटम को बेसिकली मिनिस्ट्री को अपना खुद से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसको कितना पैसा क्यों चाहिए. दैट इज जीरो बेस्ड. और फिर एक आउटकम बेस्ड होता है, आउटकम और आउटपुट. तो उसमें आप अपने फंड्स की सिग्निफिकेंस आउटकम के बेसिस पे मेजर करते हो. तो ये सारे है यार बजटिंग, गवर्नमेंट बजटिंग वाले में. आफ्टर दिस फंडामेंटल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सा फॉलो करते हैं नेशनल लेवल पे, कुछ स्टेट लेवल पे. और इसमें जो वुमेन वाला एस्पेक्ट बोल रहा था, दैट इज जेंडर बजटिंग. जेंडर बजटिंग इज कि आप वुमेन के रिलेटेड स्पेसिफिक फंड्स अलॉट करते हो हर एक प्रोविजन में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में. तो वो जेंडर बेस्ड बजटिंग हुआ है. तो आपको ये सारे पता होने चाहिए, इसका एग्जांपल पता होना चाहिए. लाइक दिल्ली गवर्नमेंट इज आउटकम बेस्ड. दिल्ली गवर्नमेंट का जो फंड बजटिंग है, दैट इज आउटकम बेस्ड बजटिंग. उसका क्या बेनिफिट रहा, उसका क्या नुकसान रहा, ये दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर बजटिंग. क्लियर? Yes, sir. Thank you. ठीक है. फिर यार नेक्स्ट टाइम कमिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी. व्हाई दिस? बिकॉज दिस सेक्शन is a paradox in itself, which I feel so, and it is ironical because it is, I believe, it is most rewarding section, and yet it is most neglected by the aspirants, which is sad. मतलब आप पेपर मार्क्स लेने के लिए जा रहे हो, और जहां आपको मार्क्स मिल रहे हैं आप वो सेक्शन पूरा छोड़ के चले जाते हो. Many people do so. Why I'm saying it is most rewarding is because एक तो सिलेबस छोटा है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही है जो आपको पढ़ने हैं, like which are some of it I have mentioned over here.
दूसरा इसमें एक काइंड ऑफ रिपीटेशन है. इफ यू सी द PYQs you will able to understand what I'm trying to say, which I'll be also mentioning next time. कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हर साल एक क्वेश्चन आता है. मतलब आंख बंद करके अभी भी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी का आएगा. इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी हाउ मेनी पीपल आर प्रिपेयरिंग साइबर सिक्योरिटी with full diligence? This is the point of concern, and that's what I'm saying. It's ironical in nature. You can go through PYQs and see every year there is one question on cyber security, one way or other. कई बार वो साइबर डोम करके पूछ लेंगे, कई बार वो किसी और तरह से पूछेंगे, बट आएगा जरूर. So it is very important. You refer your Bible which is UPSC syllabus and PYQs. You will be able to find out why I'm trying to say so. जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको इसी बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करो कि क्या करना है. जैसे साइबर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, देन टॉक अबाउट बॉर्डर मैनेजमेंट, देन एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिज्म, एंड देन मनी लॉन्ड्रिंग. इन टॉपिक्स को पढ़ना है, टॉपिक वाइज ही पढ़ना है कि व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, उसका क्या कंसेप्ट है, इश्यूज क्या है, ग्लोबल लेवल पे क्या चीजें चल रही है, एंड ऑल दिस. एंड व्हाइल यू आर डूइंग योर आंसर राइटिंग यू हैव टू ब्रेक डाउन योर क्वेश्चन इनटू पार्ट्स, बिकॉज इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते ही हैं, लाइक इकोनॉमी. ये दैट इज कॉमन फॉर ऑल GS3. that like explain how emerging technologies and globalization contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem at both national and international level. बहुत सारे पार्ट पूछ लिए यार ये तो ठीक है. पहली बात तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ये बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे इसको कर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा मेजर्स नेशनल लेवल पे, फिर मैं मेजर बताऊंगा इंटरनेशनल लेवल पे. तो ये क्वेश्चन 4 पार्ट्स में होगा. 15 मार्क्स का भी हो तो भी 3-3 पार्ट सब जगह लिखेंगे तो 3-3 आर्ग्यूमेंट हर जगह होंगे तो हो जाएगा. That is why you need to understand the skill of breaking the question into parts. Now let's in 2020 the question was there, analyze the internal security threats and trans-border crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders, including LOC. Also discuss the role played by various security forces in this regard. तो अब ये ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक मैप. और बॉर्डर में तो पता आप सबको पता भी होना चाहिए कि हर एक बॉर्डर पे कौन सी सिक्योरिटी एजेंसीज है. तो दिस इज पाकिस्तान, दिस इज म्यांमार, और यहाँ पर ये बांग्लादेश आता है. तो स्पेस नहीं है नीचे बनता. तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक योर मैप. 10-15 सेकंड में इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए. आई हैव मेंशन्ड इट इन प्रीवियस सेशंस आल्सो. See, cyber security. I have put last 3 years question over here. Every year आता है. जैसे इस साल क्या है? Keeping India's internal security, analyze the impact of cross-border cyber attacks. Discuss the defensive measures against these sophisticated attacks. Discuss the different types of cyber crimes and measure required to fight the menace. What is Cyber Dome project? Explain how it can be helped in controlling internet crimes in India. अगर किसी को साइबर डोम नहीं पता है, जैसे मुझे नहीं पता था जब मैं ये मेंस लिख रहा था, तो बट इंटरनेट क्राइम्स तो पता है ना यार, थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग तो बना ही सकते हो. तो एक पार्ट में तो यू कैन बी कंफर्टेबल अराउंड इट, और इसमें भी कुछ तो साइबर रिलेटेड ही होगा, तो वहां से थोड़ा बहुत रिलेट करके लिख दो. तो फिर भी आप यू आर इन अ बेटर पोजिशन. तो इस तरह से साइबर सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स to get an extra edge is talk about government policies and government initiatives or global initiatives in this direction. I'll show you some. And here while to bring innovation in your answers you can use quote, like there is a quote of ex-prime minister Manmohan Singh regarding extremism. It is the most important internal security issue for India, ऐसा उन्होंने बोला है. तो you can show the चार्ट एंड ट्रेंड्स की कैसे LWE के एरियाज जो है वो कम होते जा रहे हैं, और यू कैन यूज योर मैप लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट. तो ये थोड़े इनोवेटिव तरीके होते हैं व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन इंटरनल सिक्योरिटी. ठीक है. अच्छा, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट आंसर्स ना, वी विल डू सो. एक बार मैं इंटरनल सिक्योरिटी दिखा देता हूँ, फिर इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के दोनों के आंसर्स विल टेक टुगेदर. अभी इंटरनल सिक्योरिटी में लेट्स से जैसे मैंने साइबर थ्रेट का एक एस्पेक्ट लिखा है,
इसके सेकंड एस्पेक्ट में दिखाऊंगा। पहले ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी में हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, उसके रीजंस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, एक्सटर्नल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और कम्युनल डिवाइड और कास्ट फैक्टर, सोशल फैक्टर्स। तो दिस इज हाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट। ये जेनेरिक कहीं भी घुसा सकते हैं, ऐसा मैंने एक टेम्पलेट बना लिया। फिर ये साइबर अटैक में बचा डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर अटैक्स, कि साइबर एस्पियोनाज होता है, साइबर क्राइम होता है, साइबर वॉरफेयर होता है, साइबर टेररिज्म होता है। उनके जिसके जिसके एग्जांपल हैं वो लिख लिए। साइबर स्टॉकिंग के, स्टक्सनेट्स के, पुलवामा अटैक में जो वर्चुअल सिम यूज हो रही थी, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ साइबर टेररिज्म आल्सो। फिर इस तरह से साइबर टेररिज्म हो गया। ये है जो मैं बोल रहा था गवर्नमेंट पॉलिसीज वाला। ये रिसेंट एग्जांपल लिखा है ऊपर मैंने, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट। हमारी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसके बाद हमारे पास NCIIPC है, फिर NCCC है, फिर सर्टिन है, फिर I4C है, इंडिया कितना कुछ है। फिर इसके बाद हमारे पास पुलिस में भी होता है, पुलिस के पास साइबर सेल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे 3 कन्वेंशंस है। देयर इज अ गुलशन राय कमेटी व्हिच इज टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम्स। बेस्ट प्रैक्टिसेस में यू कैन टॉक अबाउट साइबर ड्रोम। अब साइबर ड्रोम तो अब कंसेप्ट हो गया ना, अब तो पढ़ सकते हो, क्वेश्चन तो एक बार आ चुका है, तो उसको एग्जांपल में लिखो। और US साइबर कमांड, तो ये सब चीजें अपने आंसर में लिखोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा ना। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो यही है यार, इज अबाउट थोड़ा मैप बेस्ड करो। जैसे ये मैप बेस्ड है, आई वाज टॉकिंग अबाउट बॉर्डर मैनेजमेंट, कैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या इश्यूज है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे क्या इश्यूज है, नेपाल में क्या है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। मैरीटाइम सिक्योरिटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। तो अब फैक्ट्स है कि लैंड बॉर्डर 15,000 किलोमीटर है, कोस्ट लाइन इज 7,500 किलोमीटर। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। ठीक है, एवरीवन विद मी? Yes. यस सर। तो अब इकोनॉमी और इसके दोनों के आंसर एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, सी क्वेश्चन इज MSP mostly have been a boon to Indian farmers and bane to Indian economy. Do you agree? इसका क्या मतलब है? boon to Indian farmers का मतलब है कि फार्मर को तो पैसा मिल रहा है, बट इंडियन इकोनॉमी के लिए नुकसान है। तो दो पार्ट में हमें बताना होगा। तो MSP की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, उसके सिंस अलग से पूछा नहीं है, बट मुझे आता है तो मैंने उसको बॉक्स में डाल के उसके बेसिक्स वगैरह बता दिए। एग्जामिनर को पढ़ना है पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा, कोई बात नहीं। अब उसके बाद जो मेन पार्ट है उस पर आ गए सीधा, कि कैसे बून है फार्मर लेवल पे, वो बता दिया कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे इंप्रूव करेगा, उसके फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे इंप्रूव करेगा, ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इंप्रूव करेगा फॉर फार्मर। देन आई टॉक्ड अबाउट बेन, कैसे है कि एग्रीकल्चर पे ओवरऑल कैसे इम्पैक्ट आता है, फूड सिक्योरिटी कैसे इम्पैक्ट हो जाती है, कई स्टेट मोनोक्रॉपिंग हो रही है, वो सारे इश्यूज हमारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। तो ये इकोनॉमी रिलेटेड रीजंस हो गए। एंड में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दे दिया कि हमें अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है तो फिर क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्स करना पड़ेगा, जिससे जो अभी MSP के वाइसेस से आ रहा है। तो इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू टैकल चैलेंजेस ऑफ पेरिशेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये आ गया सप्लाई चेन का। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मैंने यहाँ से फैक्ट लिख दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बोलती है कि अराउंड 20% ऑफ द फूड गेट वेस्टेज। यू कैन गेट पुट द एग्जैक्ट नंबर इफ यू वांट। मुझे तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, हंगर हो जाता है अमिड प्रोडक्शन। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बोलते हैं यार, इसका एक कीवर्ड है। और इट इज हंगर अमिड बम्पर प्रोडक्शन, ये भी बोल सकते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो स्टेप्स बता दिए, मेगा फूड पार्क्स बनाए हम लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया है, मार्केट की डिजिटाइजेशन किया है, एग्जांपल लिख दिए, APMCs का रिफॉर्म हुआ है, एक्सपोर्ट्स को बेटर किया है। तो इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज, मैं यहाँ पर जो पोस्ट प्रोडक्शन वाले पॉइंट्स है मैं उन्हीं को बात कर रहा हूँ। दैट इज हाउ आई एम थिंकिंग व्हाइल राइटिंग द आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट आल्सो।
फिर एंड में थोड़ा पीडीएस रिलेटेड बता दिया कि पीडीएस को भी रिफॉर्म करना इज समवेयर टैकलिंग द पेरिशेबिलिटी चैलेंज। तो ये थोड़ा लिंकेज है, दिस शोज लिंकेज ऑफ टॉपिक्स। इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी टॉपिक्स लिंक्ड होते हैं। बफर स्टॉक इज लिंक्ड टू फूड सिक्योरिटी, इज लिंक्ड टू हंगर, इज लिंक्ड टू एग्रीकल्चर, मार्केटिंग इश्यूज। तो ऐसे सारे पॉइंट्स आपके माइंड में लिंक होने चाहिए। ऑब्वियसली दे इट वोंट बी माय फर्स्ट पॉइंट, बट इट कैन बी माय, डेफिनेटली कैन बी माय 5 और 6 पॉइंट। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स बढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे। अब एक बार मैंने एक डायमेंशन अगर पीडीएस की खोल दी, तो पीडीएस तो इटसेल्फ एक टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है ना यार आपने, तो उसमें तो आप चाहे 10 पॉइंट और लिख दो। तो उस तरह से आप अपने पॉइंट्स बढ़ाओ by doing the interlinkage, but that interlinkage should be direct and explained properly. तो यहाँ पर मैं वही पॉइंट्स लिखूंगा पीडीएस के जो मेरी पेरिशेबिलिटी से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वही पॉइंट्स यहाँ पे बोलूंगा। तो दैट इज हाउ यू नीड टू राइट योर आंसर। Arising bill highlight the structural and procedural inadequacies with remedial measures। बहुत कुछ पूछ लिया भाई इस 15 नंबर के क्वेश्चन में। तो ठीक है, फूड सब्सिडी के बारे में, फूड सब्सिडी से कंटेक्स्ट दे दिया, ये करंट अफेयर से कैसे सबसे ज्यादा अलॉटमेंट है उसका थोड़ा कंसेप्चुअल आइडिया दिया है कि कैसे फूड सब्सिडी बिल बनता है, और इसमें रीजन बता दिए कि क्यों इतना बढ़ रहा है। फिर इनएडुकेसीज बताई, स्ट्रक्चरल अलग अगेन, और फिर प्रोसीजरल अलग, प्रोसीजर में प्रोसेस रिलेटेड बता दी, प्रोक्योरमेंट में अलग है, स्टोरेज में अलग है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में अलग है, फिर रेमेडियल मेजर्स बता दिए। तो बता दिया, आंसर लिख दिया, दिया है क्वेश्चन, सारे पार्ट एड्रेस भी कर दिए। तो ठीक है। हाउ हैज ग्रीन रेवोल्यूशन अफेक्टेड द ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी? दिस इज फर्स्ट। क्रॉप डाइवर्सिटी, दिस इज सेकंड। क्रॉपिंग पैटर्न थर्ड, और इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड स्पोर्ट। तो मतलब आइडियली तो इतना सब अलग अलग लिखो तो बेटर है, बट नहीं भी लिख पा रहे हो तो कम से कम ये दिखा है कि अगर आप क्रॉप डाइवर्सिटी और क्रॉपिंग पैटर्न को अलग अलग नहीं भी लिख सकते तो कम से कम लिख दो कि यार मैं आई एम टॉकिंग बोथ टुगेदर, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड क्रॉपिंग पैटर्न। क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि आप इतने ग्रैनुलर लेवल पे डिफरेंशिएट ना कर पाओ चीजों को। मैंने आई थिंक ऐसे ही किया होगा आंसर में, लेट मी सी। तो इंट्रोडक्शन दे दिया ग्रीन रेवोल्यूशन का, कब शुरू हुआ था, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी के पॉइंट्स दे दिए। हाँ सी, मैंने एक साथ लिख दिया, बट उसको पता है कि मैंने दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार टू अ कॉमन सेंस ये दोनों एक तरह से एक ही बात हो रही है, तो इतना भी डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है। फिर हेल्थ एंड वेलबींग की बात कर दी। हेल्थ एंड वेलबींग में इम्पैक्ट, दोनों इम्पैक्ट है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव भी लिखा होगा, हाँ ये रहा नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। तो उसमें पॉइंट बता दिए। तो कंटेंट और स्ट्रक्चर दोनों काफी इनरिच्ड होना चाहिए यार आपका आंसर में। मेरिट्स ऑफ रिप्लेसिंग राइस एंड व्हीट वेस्ट क्रॉपिंग पैटर्न विद पल्स ऑयल सेंसर्ड मिलेट। तो मेरिट बता दो, अच्छा होगा अगर सबको अलग अलग बता दो तो हाँ मैंने अलग अलग बताया, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक सच अ चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न विल हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी? अच्छा जी ठीक है, देखते हैं। तो मेरिट्स ऑफ रिप्लेसिंग क्या है? पहली बात तो जो नेगेटिव्स ऑफ हाई राइस एंड व्हीट है वो कम हो जाएंगे, तो वो लिख दिए पहले कि ये वाइसेस ऑफ राइस एंड व्हीट विल रिड्यूस, राइट। बफर स्टॉक वगैरह जो ये फैक्ट है, वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट 50 मिलियन टन है, एक्चुअल स्टोरेज इज 200 मिलियन टन। यू कैन चेक द फैक्ट एंड अपडेट अकॉर्डिंगली। और बेनिफिट ऑफ पल्स बढ़ेंगे, पल्सेस के अलग बेनिफिट्स, मिलेट्स के अलग बेनिफिट, ऑल सीड्स के अलग बेनिफिट। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी बता दिया कि किस पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी पर अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और स्टेबिलिटी किसको एड्रेस करेगा, वो बता दिया। तो आंसर हो गया। Again, somewhere similar question. Shift towards promotion of millets will help not only addressing the issue of dryland farming but also help adds to the dietary diversity. तो millets का पहले टेक्स्ट दे दिया करंट अफेयर से, और न्यूट्री
अब एक थोड़ा मतलब जस्ट ऑन अ साइड नोट है, मतलब यू पीपल आर आल्सो राइटिंग योर आंसर्स, तो यू विल बी गेटिंग फीडबैक, तो ऐसे आपको भी फीडबैक मिल सकते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग सम वन, ऐसा कुछ नहीं है, बट कैन ऐड मैप, कैन ऐड दिस पॉइंट, कैन ऐड दिस इज आल्सो, ऐसा मतलब आपको बहुत फीडबैक मिलेगा। बट आइडिया इज कि आप क्वेश्चंस की डिमांड को मीट कर पा रहे हो विद इन 150 और 250 वर्ड्स, वही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर 600 वर्ड्स मुझे दो और 1 घंटा दो, तो मैं एक पॉइंट पे सब कुछ लिख दूंगा, एक बुक लिख दूंगा उस क्वेश्चन पे। बट दैट इज नॉट द आइडिया। आइडिया इज कि विद इन दिस लिमिटेड टाइम ऑफ 10-11 minutes, आर यू एबल टू एड्रेस द डिमांड एंड गिव 4-5 relevant एंड important points। बस वही आपका एजेंडा होना चाहिए while writing the answers, और उसी तरह आपको इवेलुएट करना चाहिए, ठीक है ना? तो डोंट गेट कैरीड अवे बाय इफ समवन सेज कि ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो बट जो क्वेश्चन की डिमांड है, अगर मैं मैप पे लिखने लगूंगा तो मैं दोनों बाकी पार्ट्स को कैसे एड्रेस करूंगा? 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैप ही जगह ले लेगा, फिर दोनों पॉइंट नहीं लिखूंगा, फिर वहां मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब जो पार्ट पूछा है पहले वो तो लिख लूं, बाकी चीजें तो बाद में लिखूंगा ना। तो इसलिए ऑलवेज टेक दीज थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है? तो सी अगेन, 4 पॉइंट लिखे हैं, इसको 5 और 6 भी लिखने हैं, तो ठीक है भाई, लिख लो, तुम 10 भी कर सकता हूँ, बट पॉइंट नहीं है ना उस चीज का। 4 पॉइंट रेलेवेंट होने चाहिए, वो लिख दो बस। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट कि कैसे डाइटरी डाइवर्सिटी मैंने एड्रेस किया है और ड्राईलैंड फार्मिंग के इशू को एड्रेस किया है, उसके बाद वे हेड दे दिया है, तो बस ठीक है ना? आई होप यू पीपल आर एबल टू फॉलो मी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसी तरह से आपको आंसर लिखने हैं यार, और इसी तरह से ये फूड प्रोसेसिंग का है। फूड प्रोसेसिंग क्वेश्चन क्या है? चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री and local food brands in competing with bigger players who have huge market presence. List out various measures taken by government of India. Basically food processing के challenges पूछ रहा है और measures पूछ रहा है, तो बस वही challenges, वही backward challenges बता दिए, forward challenges बता दिए, steps में डायग्राम बता दिया जो गवर्नमेंट ने हमने स्टेप ये बनाना होता है आपको फूड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन में, ये तो बनाना ही बनाना है, तो बस खत्म हुआ। Discuss how food processing sector can be panacea for triple whammy of value addition, losses and disguised unemployment. तो ये तीनों चीजों के बारे में बात कर लो। अब ये देखो, 3 सिग्निफिकेंस या बेनिफिट्स तो आपको यही मिल गए सब कैटेगराइजेशन ऑफ पॉइंट की। आप अपने नोट्स में या जब भी सब पढ़ रहे हो तो इन 3 हेडिंग के अंदर पॉइंट्स बना के लिख लो, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसी को लिख देना, तो इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर। लो वैल्यू एडिशन में कैसे हेल्प करेगा, हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट में कैसे हेल्प करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट में कैसे हेल्प करेगा। ये ऑब्वियसली जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो अब इंडस्ट्रीज की तरफ मूव हो जाएगी, जेंडर एम्पावरमेंट हो जाएगी, तो इस तरह से स्किल अपग्रेडेशन हो जाएगा, तो इस तरह से पॉइंट्स बन जाएंगे। अगेन कैन ऐड इज समथिंग व्हिच कैन बी, बट दिस इज इंटरनल सिक्योरिटी। या blurred lines between civilian and military use of technologies have created invisible enemies and new set of internal security challenges. Discuss in light of drone, cyber and biotech. काफी बड़ा क्वेश्चन है। सिविलियन एंड मिलिट्री यूज की बात कर रहा है, उस टाइम पे ड्रोन अटैक हुआ था लास्ट ईयर, तो उससे मैंने स्टार्ट किया, बट किससे स्टार्ट किया इज नॉट इम्पोर्टेंट, कंटेक्स्ट करंट अफेयर से दे सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा ज़्यादा बता दिया, और फिर साइबर टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया, फिर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, ये तीनों चीज़ों को बता दिया। और आई थिंक आई मिस्ड मेजर्स पूछा है क्या क्वेश्चन में? मेजर्स तो पूछा ही नहीं है, तो फिर क्यों लिख रहा है मिस्ड? तो बस ठीक है, वे हेड में चाहो तो लिख सकते हो थोड़े बहुत मेजर। With the increasing role of technology, money laundering is changing nature. Discuss the above statement in light of recent development. Recent development से आप context या definition से या कोई recent example से मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पनामा या ऐसा कुछ केस हुआ, वहां से लिख के आप बता सकते हो। तो कंसेप्चुअल इशू लिखो। मनी लॉन्ड्रिंग का ये कंसेप्ट है, प्लेसमेंट, क्लियरिंग, ट्रांसफर, ये 3 कीवर्ड होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के।
और यहाँ से फिर बताओ, रिसेंट कंटेक्स्ट दो, कैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, रेगुलेशन नहीं है, डार्क वेब है, क्रिप्टो करेंसी, ये साइबर क्राइम्स, ड्रग ट्रेड, ये सब चीजें हैं, ये लिखो। टैक्स इवेजन की वजह से पनामा लीक्स है, ये एग्जांपल आ गया। बस ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन में, डिस्कस करना है, कैसे चेंज हो रहा है वही बताना है, वही बता दिया। थोड़ा बहुत चाहते तो इससे स्टेप्स टेकन, बट यहाँ पर सिर्फ थोड़ा के छोड़ दिया। Creation of robust cybersecurity framework demands coming out of silos and working in tandem to counter the challenges. Assess the preparedness of India's security apparatus in the event of cyber attack. तो रोबस्ट के लिए कंटेक्स्ट दे दिया पहले, साइबर सिक्योरिटी का कैसे बढ़ रहे हैं साइबर रिस्क, एग्जांपल्स लिख दिए, और प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडिया में वो जो पार्ट है पूरा, पॉलिसी क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, वो लिख दिया। और इसमें थोड़ा बहुत एक पार्ट आई थिंक इसमें मिसिंग है कि हाउ मच सफिशिएंट आर दे, इसके बारे में असेसमेंट, दैट इज मिसिंग कि आर दे सफिशिएंट, तो इनके शॉर्ट कमिंग्स क्या है और इनके पॉजिटिव्स क्या है, पॉजिटिव और शॉर्ट कमिंग। दैट इज हाउ यू नीड टू राइट द आंसर हियर। LWE, तो अब LWE का लाइक आई मेंशनड ऐसे ग्राफ बना सकते हो आप, ऐसे ये कोट यूज कर सकते हो। और अब क्वेश्चन क्या है, LWE are both development and ideological issues. Analyze the trend in LWE affected areas over the past decade and evaluate India's strategy. तो ट्रेंड तो मैंने वैसे ही बता दिया, अब इश्यूज बताने हैं बोथ डेवलपमेंटल और आइडियोलॉजिकल, ठीक है, और फिर हमारे जो स्ट्रेटजी है वो बतानी है, ठीक है। तो ट्रेंड इश्यूज बता दिए, डेवलपमेंट क्या है, आइडियोलॉजिकल क्या है, फिर इंडिया की स्ट्रेटजी बता दी और उसकी इवैल्यूएशन बता दी कि उसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव। दिस वाज द पार्ट व्हिच वाज मिसिंग इन द लास्ट क्वेश्चन, ये होना चाहिए था। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीप नेट एंड डार्क नेट, हाईलाइट वेरियस सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स पोज्ड बाय डार्क नेट एंड डिस्कस द चैलेंजेस इन इट्स रेगुलेशन। ठीक है, तो डीप नेट डार्क नेट में एक डायग्राम होता है जो सब लोग पढ़ते हैं, एक ओशियन है, ओशियन की टिप जो है दैट इज दी ओपन नेट, और उसके अंदर जो बना है पूरा आइसबर्ग, ये दैट इज द डीप नेट, और उसमें भी जो नीचे लेवल पे जाते हैं दैट इज डार्क नेट। ये बना सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो डीप नेट डार्क नेट का पार्ट बता दिया कि क्या है, इंटरनेट में कौन सा एक्सेसिबल है, कौन सा एक्सेसिबल नहीं है, क्या है उसके एस्पेक्ट्स, फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स बता दिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, एंड challenges in its regulation and way ahead. Everyone with me? कुछ बोरिंग तो नहीं लग रहा है? No, sir, we're noting. ठीक है, तब ये जैसे क्वेश्चन यूपीएससी में आया था पाकिस्तान से म्यांमार से कैसा है, ये लास्ट ये है अफगानिस्तान से रिलेटेड, तो मैप बना के दिखा दिया। और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट विच इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, क्योंकि उस टाइम पे तालिबान चेंज हुआ था रूल, अब इसमें काउंटर मेजर्स बताने हैं, तो पहले इम्प्लीकेशन बता दिया, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगा, पाकिस्तान का मोरल बूस्ट हो सकता है, तो वही सारे पॉइंट्स हैं। और फिर मेजर्स बता दिए, व्हाट कैन बी प्रिवेंटिव मेजर्स, व्हाट कैन बी प्रोटेक्टिव मेजर्स, एंड दैट्स हाउ आई हैव रिटन द आंसर। अब ये क्वेश्चन में मैप ही दिया हुआ था, तो वो मैप पे ही बताना था क्या है, तो बेसिकली वो जो नोट्स है वही पूछ लिए इसने क्या है, तो हर एक कंट्री के वाइज इश्यूज बता दो क्या क्या है, वो माय आइडिया हियर टू शो यू इज कि ऐसा कुछ बना के रख लो तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग एनी क्वेश्चन अदरवाइज, कि मेरे पास लेफ्ट विंग है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, नेपाल पे क्या है, चाइना साइड क्या इशू है, पाकिस्तान साइड क्या इशू है, बांग्लादेश साइड क्या इशू है, म्यांमार साइड क्या इशू है, इंटरनल में देखो तो नॉर्थ ईस्ट में इशू है, यहाँ LWE का इशू है, तो वो सारे इस तरह से बना के अपना बना के रख लो। श्रीलंका में देखो तो LTT वाला है, तो इस तरह से कर सकते हो आप। फैक्टर्स तो वही है, वो अलग अलग सब हेडिंग्स में बता दो, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, सोशल, सिर्फ हेड बता दो। Border security forces capacity building is a continuous process. However, key challenges have emerged in recent past.
that have prompted government to take some critical steps. Highlighting the challenges, discuss the steps taken by government. तो अननेसेसरली क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट पूछा 2-3 चीजें ही है. तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पूछा है, तो अलग अलग बॉर्डर पे कौन सी सिक्योरिटी है वो बता दिया, और उन सिक्योरिटीज के क्या इश्यूज है, इन रिसेंट टाइम इश्यूज क्या क्या हुए हैं वो एग्जांपल बता दिए. मुंबई अटैक जो था, ड्रोन अटैक, पुलवामा अटैक, ये सब चीजें जो है, और इनके चैलेंजेस बता दिए. So that is then steps to maintain border security. So all these would have been the part of question. That's why I have written it. Steps taken by government पूछा है, key challenges पूछा है, तो इसलिए वो सब लिखे हुए हैं. ठीक है, ठीक है. यस सर. Yes, sir. अब आते हैं third important area, disaster management. Again, like internal security, it is also very low hanging fruit. इसमें there are certain approach to take this topic. उस approach से करोगे तो it will be very convenient. आपको कुछ चीजें फोकस करनी है डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया ओवरऑल, कि हर एक डिजास्टर के क्या ब्रॉडली मैप में स्प्रेड है. इफ ऐसे ये इंडिया का मैप है, विच इज नॉट सो गुड, बट यस ये इंडिया का मैप है. अगर तो यहाँ पे अर्थक्वेक का क्या स्प्रेड है, अर्थक्वेक यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पर भी थोड़ा होता है, यहाँ पर भी होता है, बहुत सारा होता है. यहाँ यही अगर मैं बोलूँ साइक्लोन का क्या है, तो साइक्लोन के लिए भी एक मैप बना के आप अपने पास रख सकते हो. साइक्लोन इस साइड ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा स्प्रेड बना के रख लो हर एक डिजास्टर के लिए, माइंड में एटलीस्ट याद करके रख लो. और उस पर डेटा होना चाहिए फॉर ईच डिजास्टर, कितना ओवरऑल लैंड हमारा प्रोन है फॉर दैट डिजास्टर, उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स कोई रिसेंटली हुए हो, या कोई इनिशिएटिव हमने लिया हो फॉर दैट स्पेसिफिक डिजास्टर. और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू एनडीएमए, यू हैव टू स्टडी इट कोहेसिवली कि एनडीएमए का स्ट्रक्चर क्या है, एनडीएमए में इश्यूज क्या है. ये 3 टायर बात करता है, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या है वो चीजें, वो सब, ये ऑल दिस थिंग नीड टू बी वेरी मच कोहेसिवली स्टडीड, क्योंकि इतना ही लिमिटेड पढ़ना है. लिमिटेड ढंग से पढ़ लोगे तो आंसर अटेम्प्ट कर लोगे. तो इस एस्पेक्ट के बाद एक थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल एस्पेक्ट आ जाता है कि डिजास्टर क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, हजार्ड क्या होता है, इसका बेसिक डेफिनेशन जो मतलब इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वैसे भी मिल जाएगा, इट्स नॉट ओनली एनसीईआरटी. तो ये एक थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी रख लेना. फिर अगेन आंसर राइटिंग में ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल तो बनानी ही बनानी है. दिस डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल तो आंख बंद करके, जैसे फूड प्रोसेसिंग का मैंने बोला था, वैसे ही है. हर डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन में तो बनेगा ही बनेगा. तो जिस इधर इन योर वे अहेड और इन योर कोर क्वेश्चन और इन योर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट में जरूर आएगा. तो ये बना देना, इसको रट लेना, बनाना सीख लेना. और डिजास्टर स्पेसिफिक नोट्स जो आपके होंगे, लाइक आई टॉक्ड इन अबव, वो होना चाहिए. जैसे इस साल का क्वेश्चन था लैंडस्लाइड पे, डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड. तो कॉजेज अलग बताएंगे, इफेक्ट्स अलग बताएंगे. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस, अब ये नई चीज थी तो वो इनिशिएटिव में कवर हो जाएगा. तो ये 3 चीजों में आंसर कंप्लीट हो जाएगा. आगे सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग इज वो मैप्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन होती है. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था 21 में ही, वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड्स. अब वल्नरेबिलिटी बताने में मैं अगर मैप यूज करूंगा तो कितना कितना इम्पैक्टफुल लगेगा, इन द सेंस लाइक मैं बता रहा हूँ वल्नरेबिलिटी से कि यहाँ अगर अर्थक्वेक आता है इस एरिया में, तो यहाँ पर मेरे सुनामी आ सकता है. यहाँ अगर मेरे अर्थक्वेक आता है तो उससे मेरे लैंडस्लाइड आ सकता है. यहाँ का ही अर्थक्वेक आता है या यहाँ का ही अर्थक्वेक आता है तो मेरे हाई पॉपुलेशन एरिया में आ रहा है, जिसकी वजह से तो लाइफ लॉस हो ही सकता है. यहाँ पर भुज का एग्जांपल आ जाएगा. तो इस तरह से कितने इतनी इजीली आपकी वल्नरेबिलिटी वाली चीज कन्वे हो रही है.
So that is what you need to do. फिर एग्जांपल्स देना है फीचर्स ऑफ मेजर डिजास्टर्स व्हिच आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। तो फीचर्स में तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि भाई लैंडस्लाइड के अलग फीचर्स बता दो, सुनामी के अलग फीचर बता दो, और इस तरह से कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड्स। एग्जैक्टली जो ये मैप बनाया इसी को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है क्वेश्चन में। मैंने विदाउट रीडिंग सेकंड स्टेटमेंट ये बना दिया था, बट इसी की कंटिन्यूएशन है बेसिकली क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको हेल्प मिल जाती है यार आंसर लिखने में। डिस्कस द रीसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। तो वो आपका ये एनडीएमए से आ जाएगा कि कैसे हम पहले रिएक्टिव थे, जब डिजास्टर्स हुए तो फिर हम कुछ करना शुरू किया, तो बट अब जाके हमारे पास प्रोएक्टिव अप्रोच है, पहले से हम वो करते हैं जो मैप में है नहीं, पहले से ही आप असेसमेंट करते हो, पहले से ही आपके पास प्रिपरेशन है, तो ऑल दीज थिंग्स विल कम इन दिस पार्ट। ठीक है, पहले हम बस नीचे वाले पे रहते थे, अब हम ऊपर वाले पे आने लग जाएंगे। ठीक है, एवरीवन विद मी? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये बेसिक हो गया, व्हाट इज हजार्ड, व्हाट इज डिजास्टर, इसके कुछ टर्म्स है, मैन मेड डिजास्टर वगैरह। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है यूएन के हिसाब से, कि डिजास्टर मैनेजमेंट में अलग अलग फेजेस जो साइकिल में करते हो, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकवरी, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ कीवर्ड्स याद कर लो, है ना, और तो वो सब चीजें लिख के रख लो। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया में वल्नरेबिलिटी मैप, सारे डिजास्टर का, ये डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ एक्ट जो है उसके बारे में लिख लिया, नेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें हैं। तो सॉरी, दैट इज व्हाट एक दो मैं मैप्स दिखाता हूँ। ये जैसे ये है अब ड्रॉट है, ड्रॉट का ये मैप है। ड्रॉट 3 तरह के होते हैं ड्रॉट्स, उसके एग्जांपल लिख दिए। फ्लड्स रहते हैं, फ्लड्स का भी मैप नीचे बना रहा है, ऐसे फोटो में नहीं आया, तो फ्लड्स का मैप बना लो। ये अर्थक्वेक रिलेटेड बनाया हुआ है ऊपर की, कैसे अर्थक्वेक से सुनामी आता है। ये साइक्लोन है, साइक्लोन 8% ऑफ टोटल एरिया से आता है। स्ट्रक्चर की फोटो एक एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई है, ऐसी दिखती है वो बना सकते हो। फिर उसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं, सॉरी, तो उसके दिखा दिए कहाँ कहाँ पर आता है। हीट वेव, अगेन हीट वेव के मैप नहीं है बट उसका फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कब होता है हीट वेव, लैंडस्लाइड। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट होगा तो ये साइकिल, जब मैंने अभी बताया आप लोगों को, इसको बना के रख लो अपने पास, हर बार आंसर में लिखनी है, बनानी है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है यार। अब आते हैं इन्वायरमेंट पे। अब इन्वायरमेंट और साइंस, ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिसमें ना थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल होता है, बट more is with respect to current affairs. I would say 80 to 90% is current affairs and 10 to 20% is conceptual or let's say static in nature. तो stress more on current affair part. Approach वही रहेगी जैसे हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को किया था, exactly same approach से इन दोनों टॉपिक्स को करेंगे। और ऐसे टॉपिक्स में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना ज्यादा कैसे करना है, बट प्रायोरिटाइज करो, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रही हैं उनको पहले पढ़ना है, उनको याद रखना है। जैसे इन्वायरमेंट वाले में जो भी कन्वेंशन हुई है पिछले 1 साल में, उसको तो बहुत ही इन डेप्थ पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट के किसी और छोटे फूटे टुच्चे से टॉपिक को पढ़ने में रह गए और जो इम्पोर्टेंट था वो याद किया नहीं। तो इसलिए प्रायोरिटाइज करो, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं पहले उनको पढ़ो। ठीक है, like I mentioned here, focus area is conventions which happened last year. जो conceptual वाला part आता है, that is this. आपको कीवर्ड वाइज थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, पॉल्यूशन क्या क्या है। पॉल्यूशन जब आप बोलते हो
तो उसमें वाटर, एयर, लैंड, ई वेस्ट, ये सब अलग अलग पोल्यूशन के बारे में बेसिक फैक्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। एयर पोल्यूशन इज वन थिंग विच हैज बीन आस्क्ड 2 टाइम्स, इस साल भी पूछा गया है और लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो बाय अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज यूपीएससी फोकसिंग ऑन, क्योंकि ये टॉपिक सुनने में बहुत वास्ट हो जाता है, इसका सिलेबस भी इतना डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइक इट इज फॉर इकोनॉमी एंड internal security and disaster. So that's how you need to prioritize your preparation. When you come to answer writing, it's always, as I said, subcategorization of point is very beneficial here. अच्छा ये गलत प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो उसे सब कैटेगराइज करो कि कैसे जनरेशन के इश्यूज हैं, कैसे ट्रीटमेंट में इश्यूज हैं, कैसे उसके बीच में जब वो ट्रांसपोर्टेशन होता है वेस्ट का या पॉल्यूशन का तब तब इश्यूज है। अगर एयर पॉल्यूशन, हाँ उसमें भी सेम आ जाएगा। तो इस तरह से अपने पॉइंट्स को लिखो। सॉलिड वेस्ट आता है उसमें भी ऐसे ही कर सकते हो आप। लेजिस्लेशन पे फोकस करना है, जैसे ऊपर लिखा है 3-4 एक्ट है, इनके बारे में प्री रिलेटेड नहीं बट मेंस रिलेटेड पढ़ना है कि उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, उसके इश्यूज क्या है और उसको कैसे ठीक करना है, इस तरह से पढ़ना है। तो जैसे, और अगर करंट अफेयर्स में कोई लेजिस्लेशन रिलेटेड कुछ हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक इट हैपेंड इन 2020 जब EIA नोटिफिकेशन आया था, फिर तो वो आना ही था क्वेश्चन, मतलब नो डाउट। बट कई बार स्टैटिक भी पूछ लेता है तो उसमें आ जाता है, जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में पूछ लिया था 2018 में, करंट अफेयर्स में नहीं था, बट दिस इज समथिंग विच इज ऑलवेज करंट अफेयर्स बिकॉज इट इज कंसेप्चुअल। तो इस तरह से आप ये बेसिक चीजें करके इन्वायरमेंट में यू कैन बी वेरी डिसेंटली प्रिपेयर्ड टू हैंडल एनी क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे जैसे उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज पे हुआ था, तो वन वर्ल्ड वन चीज थी, तो लेट ये नहीं आप, तो मैं कुछ और दिखाता हूँ। लेट्स से दिस, ये जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जनरेशन पे क्या इश्यूज हैं, कलेक्शन में क्या इश्यूज हैं, ट्रांसपोर्टेशन में क्या इश्यूज हैं, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल में क्या इश्यूज हैं, और ओवरऑल इज फंड्स, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज का तो इशू है ही। तो अब ऐसे कोई इशू, कोई सॉलिड वेस्ट रिलेटेड, प्लास्टिक वेस्ट रिलेटेड, ई वेस्ट रिलेटेड कुछ भी आता है तो मैं ब्रॉडर सेंस में लिख सकता हूँ। तो इस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो फॉर इन्वायरमेंट। और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट और साइंस के लिए, तो प्लीज 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 बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। जैसे सॉलिड वेस्ट में ही अगर आप देखो, सोल्यूशन में देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, लोकल लेवल पे भी कुछ प्लेसेस आर वेरी नोन फॉर मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट लाइक एलापुजा एंड पानाजी। तो ये सब चीजें अपने आंसर में लिख सकते हो आप। प्लास्टिक वेस्ट इम्पैक्ट साइड पे एक ओवरऑल टेम्पलेट बना के रख लो। इम्पैक्ट में देखो तो लैंड, वाटर, एयर पे क्या इम्पैक्ट होता है प्लास्टिक का। प्लास्टिक इज इम्पोर्टेंट दिस ईयर आई थिंक, क्योंकि 100% प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है, तो बिकॉज ऑफ इट दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ क्या है, इसका इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमी क्या है, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ क्या है, इस तरह से सब कैटेगराइज करके अपने नॉलेज को कंसोलिडेट कर लो। ठीक है, एक दो चीज और दिखा देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। वाटर पॉल्यूशन है तो उसका ग्राफ क्या है, वाटर क्राइसिस का जैसे क्वेश्चन था उसमें राइट साइड का जो डायग्राम है इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो पता होना चाहिए। नीति आयोग का लाइक आई सेड क्या इश्यूज है वो बता दिए यहाँ पर। वाटर इश्यूज, वाटर में हम सॉल्यूशन क्या है, कॉजेज क्या है, उस तरह से लिख के रख दिया है। अभी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 2018 में, इट रिमेन्स इम्पोर्टेंट। तो क्योंकि इससे पहले 88 में आई थी, उसकी क्या इश्यूज थे, उससे हमने क्या चेंजेस किए। तो इस तरह से थोड़ा अपने नॉलेज को कंसोलिडेट करके रख लो। EIA क्या है, उसके 6 स्टेजेस, ये स्टैटिक पार्ट है। EIA का कोई क्वेश्चन आएगा उसमें ये तो लिख ही सकते हो आप। फिर EIA क्यों इंपॉर्टेंट है उसके थोड़े एग्जाम्पल। एंड EIA पॉलिसी 2020 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, may not be now but it was last year and last year. As I said, environment and science are very dynamic, so things change, keeps on changing. I'll take questions both
टुगेदर, चलो अभी ले लेते हैं, डिजास्टर और इन्वायरमेंट के ले लेते हैं। अब सी, कम्युनिटी रेजिलियंस इज अ सक्सेसफुल फॉर्मूला फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है जी। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या होता है पहले तो वही बता दिया, सो दैट एग्जामिनर नोज कि मुझे किस कंटेक्स्ट में मैं बात करूंगा। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में वो पूरा साइकिल बता दी। अब इसमें कम्युनिटी कैसे हेल्पफुल होगी, कम्युनिटी रेजिलियंस, बेसिकली कम्युनिटी रेजिलियंस इज नथिंग बट कि कैसे कम्युनिटी लेड अगर इंटरवेंशंस होते हैं तो वो हेल्पफुल होंगे। तो वहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, सब वो उसके बारे में सोशल कैपिटल यूज होगी। तो कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, लाइक उड़ीसा और केरला, इन सब का जो केस था उसमें हेल्प किया था कम्युनिटी रेजिलियंस ने, तो वो बता दिया। बट इसके कुछ चैलेंजेस हैं वो वे हेड में बोल दिए, और आई कैन टॉक अबाउट इट सेपरेटली आल्सो, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर टाइम एंड स्पेस कि आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो। The most disaster-prone regions are the ones inhabited by marginalized and poor. In this context, explain how we can achieve integration of disaster risk reduction in developmental planning. Okay. ठीक है, पहली तो एक जेनरिक स्टेटमेंट ही है, बट पॉइंट हियर इज integration of disaster risk reduction in developmental planning. So that is what we need to ask. Disaster risk reduction है, see the point which I was emphasizing, ये चार्ट तो बनाना ही बनाना है। अब इसका बता दिया कि स्ट्रेटजी हमारा चेंज कैसे हुआ सेंडाई फ्रेमवर्क के आने के बाद, इससे पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क था। तो अब इसको अचीव इंटीग्रेशन कैसे करना है वो बता देंगे। डेवलपमेंट में आप गवर्नेंस मैकेनिज्म में यूज करोगे इसको, हजार्ड मैपिंग करोगे, जोनेशन करोगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप, फिर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे। तो दैट इज हाउ योर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड योर डेवलपमेंट, बोथ ऑफ देम आर कोइंसाइडिंग। दैट इज हाउ यू नीड टू राइट योर आंसर। ये तो साइंस एंड टेक है। एक बार एनवायरनमेंट देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमी टू मॉडर्नाइज विदाउट द नीड ऑफ टू कार्बनाइज। मतलब इकोनॉमी के लिए अपॉर्चुनिटी है मॉडर्नाइज करने की विदाउट कार्बनाइज। ओके, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। पहले तो यही बात, इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी बतानी है टू लेवरेज बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। 3 पार्ट हो गए। ठीक है जी। गवर्नमेंट कंटेक्स्ट सेट कर दिया क्योंकि लास्ट ईयर आया था बजट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बता दिया कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जिसमें हम हाइड्रोजन जनरेट करते हैं फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, बट इट विल मॉडर्नाइज। तो मॉडर्नाइज बता दिया, कैसे मॉडर्नाइज करेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ेगी, बहुत वाइड एप्लीकेशंस होंगी, बट इट विल नॉट कार्बनाइज। क्यों? क्योंकि आप कोई ग्रीन हाउस इमिशन नहीं करोगे, इट विल बी क्लीनर एनर्जी। तो पॉइंट्स कैन बी एनीथिंग, बट द आइडिया इज यू आर एड्रेसिंग द डिमांड। यहाँ पर थोड़ा बहुत फैक्ट्स वगैरह ऐड कर दो, बट इतने इतने स्पेसिफिक टॉपिक्स के जनरली फैक्ट याद होते नहीं है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर बताना है क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, तो उसमें स्ट्रेटजी बता दिया, पॉलिसी लेवल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी लेवल इंटरवेंशन एंड अदरवाइज इंडस्ट्री लेवल इंटरवेंशन कंक्लूड कर दिया। डिस्कस द डिस्कशन अराउंड EIA has moved from procedural implementation to the more substantive goal of EIA, substantive goals, and its place within its broader decision making context. फालतू में कॉम्प्लिकेट किया हुआ है क्वेश्चन को। Assess the effectiveness of EIA, that is third thing, and suggest reforms to make it more integral part. तो यार इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूपीएससी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछता है, बट अगर ऐसा ही आपके सामने अगर ऐसा आ भी जाए तो उसको कैसे एड्रेस करोगे। तो EIA पहले क्या होता है वो बता दिया, उसकी स्टेजेस लिख दी, हाउ इट इज मूविंग फ्रॉम प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन टू सब्सटेंटिव गोल्स, ये बता दिया कैसे प्रोसीजरल था, कैसे वो सब्सटेंटिव गोल्स की तरफ है। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट इफेक्टिवनेस क्या है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, बट स्टिल इट इज नॉट एज इफेक्टिव, तो उसके एग्जांपल पॉइंट्स दे दिए। और लास्ट में बताना है रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स दे दिए क्या क्या उसके रिफॉर्म्स हो सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल प्रैक्टिस एक अच्छी है,
ऑस्ट्रेलिया में EIA की जगह SIA होता है, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट असेसमेंट, तो वो लिख सकते हो, जिसमें बहुत ब्रॉडर है वो एज कम्पेयर टू हमारा EIA, तो वो बोल सकते हो आप। और एक क्वेश्चन है ये, वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड, अपेरेंटली इससे रिलेटेड एक्चुअल UPSC में भी आया था। दैट इज सो मोर सो बिकॉज क्योंकि करंट अफेयर में बहुत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चीज थी, तो मतलब ना पढ़ना तो बहुत एक तरह से करा, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो OSOWOG जो है ISA का है इनिशिएटिव, 24/7 अवेलेबल करेगा एनर्जी को, एल्यूसिडेट, तो इसी को एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो डिस्कस एसोसिएटेड चैलेंजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ OSOWG। ठीक है, 3 चीजें बता देंगे। पहले तो इसी को एक्सप्लेन कर देंगे कैसे सबको इलेक्ट्रिसिटी देगा, तो उसको बढ़िया सा वर्ल्ड मैप बना के दिखा दो भाई, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, तो ठीक है, सबके पास इलेक्ट्रिसिटी है 24/7। आई हैव मेंशनड इट बिकॉज उन्होंने इस पार्ट को अलग से एक्सप्रेस किया था बताने के लिए। फिर उसके बाद इसके चैलेंजेस बता दिए, चैलेंजेस पूछे, हाँ सिग्निफिकेंस पूछा, तो चैलेंजेस बता दिए इसके क्या चैलेंजेस हैं, फिर इसकी सिग्निफिकेंस बता दी, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर अ कंट्री लाइक अस, फिर इसका वे एड बता दिया। ठीक है, एवरीवन विद मी? यस सर। Yes, yes. या थोड़ा टेक्निकल बोरिंग हो सकता है लग रहा हो, या लग रहा है क्या, पहले तो यही बता दो। Sir, no, no, not bonus. ठीक है, मैं बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ GS3 एंड कैसे उसको अप्रोच करना है? यस सर। Yes, So yes. that is the idea. ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है अपना साइंस का। साइंस अगेन इट इज द मोस्ट करंट अफेयर रिलेटेड थिंग, ठीक है ना, तो इसमें कंसेप्चुअल उतना ही रेशियो रहेगा। कंसेप्चुअल में इसमें आपको जो टेक्नोलॉजीज पेपर में दी हुई है ना, उनके बारे में डेटा होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नैनोटेक क्या होता है, बायोटेक क्या होता है, स्पेस टेक क्या होता है, डिफेंस टेक क्या होता है, AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, और वो ब्लॉकचेन, यस ब्लॉकचेन इज अनदर टेक्नोलॉजी। बस इन टेक्नोलॉजीज के अराउंड बेसिक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रख लो, जिसको आप अराउंड 50 to 100 वर्ड्स में अगर आए क्वेश्चन तो एक्सप्रेस कर सको। क्या है वो टेक्नोलॉजी, उसके क्या इश्यूज है, उसमें गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, एंड और ठीक है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें, तो ये सब लिख लो। फिर करंट अफेयर्स में एज आई मेंशन फॉर इन्वायरमेंट एंड IR कोई भी कंपाइलेशन पढ़ लो, 2 पढ़ लो, इट इज बेनिफिशियल। फिर उसमें से चीजों को शॉर्टलिस्ट और प्रायोरिटाइज कर लो, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। और आंसर राइटिंग में यू हैव टू राइट इश्यूज with respect to whatever technology is being talked about and government initiatives, तो इनके यहाँ पर ये चीजों का नोट करके जरूर रखना है। ड्रॉ डायग्राम्स, जैसे अगर ब्लॉकचेन आता है तो वो इफ पॉसिबल ऐसे डायग्राम बना दो, ऐसे ब्लॉक है, ये चेन में होंगे, दिस इज ब्लॉक चेन, सिंपल सा बना दो, 10-15 सेकंड लगेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या बनाना चाह रहे हो। ऐसे इस तरह से you can make diagrams. And one thing is, which is not so more in other parts, but very much in science and tech, is you have to be ready for bouncers. You have to be ready for bouncers. Like I said, जिस साल जैसे 2 मेजर बाउंसर्स थे, एक ब्लू LEDs वाला बाउंसर था और एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था। Although we have heard कि S-400 एयर सिस्टम है, रशिया का है, बट इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन आई डोंट थिंक एवरीबडी इज अवेयर अबाउट। तो ऐसे क्वेश्चन देख के पहली बात घबराना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बाउंसर है तो सबके लिए बाउंसर होंगे, तो इसलिए पहले से प्रिपेयर करके जाओगे ना कि 1-2 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो फिर वहां पर एकदम से घबराहट नहीं होगी। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट ऑल दिस क्वेश्चन इज, मैं तो इनको बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भाई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो किसी को नहीं आता है, ठीक है, तो अब इफेक्टिवली पेपर में जो इवेलुएट होगा ना परफॉर्मेंस, वो 19 क्वेश्चन पे इवेलुएट होगी। अगर इस केस में बात करूं तो 18 क्वेश्चन पे इवेल्यूएट होगी। इन 2 क्वेश्चन में तो सभी को 2-3 नंबर मिल रहे हैं यार। जो बहुत अच्छा लिखा आएगा वो कितने ही, मतलब परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स विल बी वेरी लेस, बट लार्जली आई एम टॉकिंग अबाउट इन द कंपटीशन सेंस। लुक एट इट इन द एज एन अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू द कंपटीशन, कि इस क्वेश्चन को में सभी को 2-3 नंबर मिल रहे हैं,
तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दैट इज वन। सेकंड, बाकी क्वेश्चन में लगा के उसके आंसर्स की क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ। तो लुक एट दीज क्वेश्चंस विद दिस पर्सपेक्टिव, है ना। छोड़ दो उस क्वेश्चन को एक बारी को, बाकी पहले बाकी सारा कर लो, फिर एंड में जितना टाइम बचेगा उसमें लिख देना जो भी जो लिखना है उस टाइम पे। फिर ये आफ्टर ऑल दीज थिंग्स कम्स, फिर आता है कि अब ये क्वेश्चन अब लिख रहे हैं तो फिर क्या लिखने होंगे। तो अप्रोच वही रहेगी जो इकोनॉमी वाली रही थी, जो जितना आता है उसको क्वेश्चन से लिंक करके लिख के आओ, ठीक है ना। ब्लू एलईडी पे जितना आता है, ब्लू एलईडी का एवरीडे लाइफ इम्पैक्ट लिंक करके दिखाओ। सिर्फ ब्लू एलईडी से ही नहीं होगा, एवरीडे लाइफ इम्पैक्ट बताओ ना, कैसे आपकी ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी विल बी एबल टू रीच टू द लास्ट माइल टू द पुअर, कॉस्ट कम हो जाएगी, पैसे कम लगेंगे। तो इस जो क्वेश्चन रिलेटेड जो पॉइंट्स है ना उनको लिखो, दैट मे बी योर जनरल नॉलेज पॉइंट बट राइट इट विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन स्पेसिफिकली। तो यही सब मैं लिख के आया था यार, ऐसे ही लिखा था। somebody would have written it better but I'm talking with a sense कि अगर मुझे नहीं आता है तो कैसे करना। और ऐसे साइंस में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes. साइंस में अगेन सेम पे आपको प्रिपेयर टेक्नोलॉजी वाइज। लेट मी सी अगर मैंने कुछ इसमें आपके लिए रखा है कि नहीं। साइंस 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 में एक मिनट, हाँ सी दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी पे एक बेसिक सा, क्वांटम क्या होता है, क्यूबिट्स में काम करता है, इसके रिगार्डिंग देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स। इट इज अबाउट सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट, क्वांटम सुप्रीमेसी। उसके बारे में थोड़ा बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, जनरिक सा आइडिया हो उसके एडवांटेजेस क्या है लिख लिए, और उसकी एप्लीकेशंस क्या है वो लिख ली। हाँ, ऑन दिस नोट टेक्नोलॉजीज को ना आप दो तरह से करना है डेफिनेटली। एक तो टेक्नोलॉजी, जैसे सपोज आई एम टॉकिंग हियर क्वांटम, ठीक है, तो इसका एक तो एप्लीकेशंस देखना। एप्लीकेशंस लार्जली इन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, मेन तो ये तीन है। इसके साथ में अगर और कोई भी आती है तो वो कर लेना अदर, ठीक है। एक तो ऐसे हर एक टेक्नोलॉजी का लिखना, डू दिस फॉर नैनो ऑल्सो, डू दिस फॉर बायो ऑल्सो, डू दिस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो और अदर्स। एक ये करना है टेक्नोलॉजीज के लिए। दूसरा करना है आपको डोमेन स्पेसिफिक। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ओवरऑल टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकते हैं, बेसिकली इसी चीज को उल्टा कर दो। जो यहाँ पर आपने नैनो में एग्रीकल्चर लिखा है, बायो में लिखा है, इसको अलग से एक बार कोलेट करके सिर्फ एग्रीकल्चर के अंडर लिख लो। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्रीकल्चर पूछ लेगा कि कैसे टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में हेल्प कर रही है। उस टाइम पे आपका माइंड में नॉट बी सो फ्लेक्सिबल या सो क्विक कि आप अलग अलग डोमेन से वो पॉइंट्स उठा के लिख लो। बट एक बार आपने ये एक्सरसाइज अलग घर पे बैठ के कर ली ना, ये सारी टेक्नोलॉजीज का एग्रीकल्चर में क्या है, तो वहां पर आराम से आंसर लिखा होगा और फिर वो ऑटोमेटिकली आपका सब कैटेगराइजेशन होगा। लिख दो नैनोटेक 3 पॉइंट, बायोटेक 3 पॉइंट, ऐसे करके लिख लो। माइंड में एक बार ये चीज जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर बोथ वेज। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट डोमेन है, इनके बारे में वर्क कर लेना, और ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है वो वर्क कर लेना। इसके चैलेंजेस लिख लिए, क्या चैलेंजेस है टेक्नोलॉजी के और ये सब। अब ये है जैसे ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का क्या होता है, चेन ऑफ ब्लॉक्स है, उसके एग्जांपल एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी। इसके कंसेप्चुअल एडवांटेजेस लिख लिए, कैसे इम्यूटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, ऑथेंटिक है। एप्लीकेशन लिख लिए अलग अलग डोमेन में, चैलेंजेस लिख लिए। तो इस तरह से यू कैन राइट। अब ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का है, आई थिंक सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। फिसाइल मटेरियल क्या होता है, फर्टाइल मटेरियल क्या होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हम यूरेनियम डालते हैं जिससे प्लूटोनियम बनता है, फिर इसी प्लूटोनियम को हम सेकंड स्टेज में यूज करते हैं जिससे एनर्जी बनती है। और एक्चुअली में U-235 जो होता है, तो बेसिकली जो ऑड वाला है दैट इज फिसाइल।
फिसाइल इज जो टूट के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। डू यू वांट मी टू गो इनटू सच डेप्थ या सबको पता है? आइडिया है सर मुझे, तो बाकी किसी और को पूछना हो तो। सॉरी, मुझे आइडिया है सर, बाकी अगर किसी और को पूछना हो तो नो प्रॉब्लम। Yes, sir. If ठीक है। possible, then somewhat you can explain, no, somewhat to some extent. ठीक है, मैं बहुत ब्रॉड लेवल पे बता देता हूँ। या देखो, दो तीन तीन मटेरियल इसमें यूज होते हैं, यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम। उनकी अलग अलग स्टेट बोल सकते हो आप। जो उसमें ऑड वाली स्टेट होती है ना, 235 यूरेनियम, प्लूटो 239 और यूरेनियम 233, ये जो होती है ये सब फिसाइल होती है। ये बेसिकली बाद में एनर्जी जनरेट करेंगी बाय गोइंग टू नेचुरली फ्यूजन प्रोसेस में। फर्टाइल मटेरियल होता है जो पहले फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट होगा, तो जिसके बाद ही वो फिर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। और इनरिचमेंट और ट्रांसम्यूटेशन होता है कि आप कैसे एक मटेरियल को दूसरे में कन्वर्ट करते हो। और एक इनरिचमेंट इज एक टाइप ऑफ स्टेट ऑफ यूरेनियम को बढ़ा रहे हो। जैसे यूरेनियम ओर से आपको 235 कम मिलता है, 238 ज्यादा मिलता है। अगर आप 235 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो समहाउ, तो आप इनरिच कर रहे हो एंड मेकिंग इट मोर फिसाइल। तो ये ब्रॉडर टर्म्स है और प्रोसेस है, फ्यूल है। अब होता क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेज वाले में हम जो नॉर्मल अवेलेबल 238 और 235 वाला होता है उसको डालते हैं। 235 वाला डायरेक्टली एनर्जी जनरेट कर देता है, 238 वाला प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्लूटोनियम 239 वाले को हम नेक्स्ट स्टेज में यूज करते हैं एज अ मटेरियल, इनपुट मटेरियल, जिसमें अगेन यूरेनियम 238 डालते हैं और थोड़ा थोरियम डालते हैं, जिसमें यूरेनियम और थोरियम अलग अलग चीजें बन जाता है। और प्लूटोनियम वाले से सेकंड स्टेज को बोलते हैं कि इट प्रोड्यूसेस मोर प्लूटोनियम देन व्हाट वी गिव्स। तो ये बेसिक साइंस से तो अगेंस्ट जाएगा नहीं, जितने आप इनपुट दे रहे हो उससे ज्यादा तो कुछ निकल नहीं सकता है। तो वो बोलते इसीलिए क्योंकि आप डालते प्लूटोनियम थोड़ा सा हो, बट यूरेनियम भी प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए प्लूटोनियम ओवरऑल ज्यादा बाहर निकल के आता है। तो ऐसा मत सोचना कि प्लूटोनियम थोड़ा डाला और वही प्लूटोनियम 10 ग्राम का 100 ग्राम बन के निकल गया, तो वो नहीं होता है। तो थोरियम जो है, थोरियम जो 233 में कन्वर्ट हुआ है, उसको थर्ड स्टेज में 233 वाला फिसाइल होकर एनर्जी देता है। तो ये ओवरऑल है यार न्यूक्लियर एनर्जी का फंडा। मतलब मैंने बहुत बहुत ही बेसिक और बेसिक लेवल पे समझाया है। जो 235 वाले से एनर्जी जनरेट होती है उसकी ये रिएक्शन है। 235 में न्यूट्रॉन जैसे बॉम्बार्डमेंट करोगे आप, तो उससे बेरियम और क्रिप्टन बनता है। और क्रिप्टन के साथ फिर 3 न्यूट्रॉन निकल के आते हैं, जो फिर चेन रिएक्शन में अलग 3 यूरेनियम को बॉम्बार्ड करेंगे और एक एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी को हम फिर स्टीम प्रोडक्शन में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करते हैं। दिस इज व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। थोड़ा समझ में आया क्या? Yes, yes. ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओ सनस्टैंड, ये तो छोड़ो, ये तो इधर आ चुका। ये न्यूक्लियर एनर्जी के वही कंसेप्चुअल चीजें हैं कि इश्यूज क्या है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? We have thorium reserves. हाँ, सर तो एक तो रिजर्व्स कोल तो है। इंपोर्ट्स, यस, कोल इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है हमारे। दो करेक्ट। हम तो यार दोनों एस्पेक्ट्स पे आर्गुमेंट आप बना सकते हो। दो एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट, So your screen sharing has stopped. स्क्रीन शेयरिंग की स्टॉप क्या? एक सेकंड। तो आप दोनों लेवल पे आर्गुमेंट दे सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कि एक तो हमारा प्रेजेंट एनर्जी मिक्स जो है, उसके एस्पेक्ट में कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें हम कितने ऑयल डिपेंडेंट है, विच इज फॉरेक्स रिलेटेड।
और कॉस्ट रिलेटेड. सेकेंड इज विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल थिंग, कैसे जो एग्जिस्टिंग एनर्जी मिक्स में हम नॉन रिन्यूएबल फोर्स यूज कर रहे हैं उसमें कितना इन्वायरमेंटल ग्रीन हाउस गैस और ये सब एमिशन बहुत बढ़ रहा है. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. सेकेंड पार्ट ऑफ इट विद रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड सस्टेनेबिलिटी, कि हमारे क्या बिकॉज ऑफ थोरियम रिजर्व्स, और अगर हम थर्ड स्टेज क्रैक कर लेते हैं तो इट इज बीइंग सेड दैट वी विल बी एबल टू फ्यूल आवर एनर्जी फॉर अराउंड 400 years बाय आवरसेल्व्स. So this is a big thing to justify the importance of nuclear energy. So that is with respect to demand. And second, हमारी population इतनी ज़्यादा है तो हमारी demand energy की बहुत रहने वाली है, तो we cannot ignore the this technological advancement aspect. इसी आर्ग्यूमेंट को आप इसलिए भी यूज कर सकते हो अगर आप बोलते हो कि वी कैन नॉट कम्प्लीटली शिफ्ट अवे टू न्यूक्लियर ओनली, क्योंकि इतनी हमारी डिमांड है और इसके भी कुछ चैलेंजेस है, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग मिक्स है वो रहेगा ही रहेगा. थोड़ा बहुत उसकी परसेंटेज कम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 100% यहाँ मूव हो जाए. तो ये दोनों चीजें रहेंगी. इसके भी कुछ नेगेटिव्स हैं, इसके भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, बट जो ज्यादा पॉजिटिव है उसको ज्यादा रखेंगे, जो ज्यादा नेगेटिव है उसको कम रखेंगे. गॉट इट? यस सर. Yes, sir. Yes, Yes. yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब आ जाओ. ये जस्ट अ सेकेंड. अब आ जाओ टेक्नोलॉजी में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लॉकचेन? Analyze its prospects in enhancing transparency, electoral transparency, and conduct of free and fair elections. अरे भाई, तो ब्लॉकचेन का ऐसा कंसेप्ट बता दिया, वही जो छोटा सा डायग्राम है वो बना दिया. फिर इसका एप्लीकेशन पूछा है तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, कैसे इलेक्टोरल रिलेटेड, वोटर्स डेटा, प्राइवेसी, रिकॉर्ड्स की ट्रांसपेरेंसी, पार्टीज फंड और उन सब वो सारी बातें कर दी. बस ठीक है. Challenges missing that. Development in quantum computing will help India's population realize future expectations of various fields. Okay, quantum computing. What do you understand by quantum computing? Explain its example, advantage over traditional computing. तो थोड़ा बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो वही लिख दिया, कंटेक्स्ट रिसेंट सेट कर दिया, और वही जो चार चीजें मैंने आपको बताई हैं वो लिख दी. यहाँ पे फीचर्स है, एडवांटेजेस लिख दी, बेनिफिट्स लिख दिए, तो थोड़ा अलग अलग फील्ड में लिख दिया क्या बेनिफिट हो सकता है, एजुकेशन, और फिर कंक्लूड कर दिया. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज अबाउट साइंस. एंड ठीक है, तो वही है, वही आई लाइक टू कंक्लूड. जो बेसिक मेरी मोटिवेशन कोड थी, जो मेरी स्टडी टेबल पे लिखी रहती थी कि बियर द पेन ऑफ डिसिप्लिन टुडे सो दैट यू डोंट हैव टू बियर द पेन ऑफ रिग्रेट इन फ्यूचर. तो थोड़ा टाइम है, थोड़े टाइम की और मेहनत है. गिव योर 100% एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. Any doubts, anything, anyone want to share anything? सर मेरा एक डाउट था. एक सेकंड. हाँ बोलो. साहिल है सर. हाँ साहिल बोलो. सर मेरा डाउट ये था, जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था वो मोर और लेस एड्रेस हो गया था कि भाई हाँ. जो अननोन क्वेश्चंस है उसे कैसे एड्रेस करना है. अब जो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक ये पूछा था, लास्ट ईयर मैंने हाँ इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली तो मैंने एड्रेस नहीं किए थे, बट मैंने सारे क्वेश्चंस अटेंड किए थे GS3 में. और बहुत सारे कुक्ड अप आंसर्स लिखे थे ऑब्वियसली मैंने, और मेरे को काफी गंदे मार्क्स मिले थे GS3 में. तो इस बार मुझे थोड़ा सा डर इस चीज का है कि अगर मैं अपना कंटेंट लिखूंगा, मतलब जैसे आपने कहा था कि हेडिंग्स वो लिख के लेकिन कंटेंट को रिलेट करने वाला, तो वहां पर कहीं नेगेटिव ना चला जाए वो चीज. यार ये जो चीज मैं बता रहा हूँ दैट इज मतलब लास्ट रिजॉर्ट, मतलब डोंट यूज इट एज योर फर्स्ट
हेलो Recording in progress. हेलो 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 Hello, am I Yes, sir, audible? you are audible. You are audible now. Yes, sir. Someone is sharing क्या? कौन शेयर कर रखा है? अच्छा, ये 2 बार ज्वाइन हो गया क्या मेरा? Is my screen visible? Yes, sir. Now it अच्छा, is not. Now it's gone, sir. तो I was mentioning about जो तुम्हारा डाउट था वो क्लियर हो गया क्या? सर वो बीच में चली गई थी. हाँ वैसे लास्ट रिजोर्ट बोला था आपने, लास्ट रिजोर्ट की तरह यूज करना है. हाँ उसके मतलब मैं कह बाद रहा हूँ कि लास्ट रिजॉर्ट होता है जो आप पूछ रहे हो ना कि नेगेटिव तो नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा जब अगर आप उसको रिलेट लिंक ठीक से कर पाते हो अपने पॉइंट्स को. जैसे जितने पॉइंट्स में अगर वो आपका पॉइंट्स में लिंकेज विजिबल है ना तो वो नेगेटिव नहीं जाएगा. अगर उन पॉइंट्स को एज इज लिखोगे तो वो नेगेटिव जाएगा. लाइक अगर ब्लू एलईडी पूछा है और आपका एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है एवरीडे लाइफ में कि यार ब्लू एलईडी हैज ब्लू कलर विच इज बेटर देन व्हाइट कलर, तो इसमें यार वो लिंक तो दिख ही नहीं रहा ना. तो और ये पॉइंट भी ऐसा लगेगा कि यार बहुत ही नॉर्मल सा लिख दिया. अगर इसको आप समहाउ एवरीडे लाइफ से लिंक कर दे रहे हो तो वो नेगेटिव नहीं जाएगा. तो वो लिंकेज इंश्योर करना कि यार है आपके आर्गुमेंट्स में. ठीक है. एनीथिंग एल्स? सर मैंने यस सर आई सेंट अ क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट चैट रूम पे. कैन यू सेंड इट अगेन? दिख नहीं रहा यार. sir, I'll read it out. Okay, here send it again. 25 marks, but now I don't feel I have any time to revise and solve marks. 25 marks as in 25 पेपर? हाँ सर, 25 पेपर, 4-5 हर सब्जेक्ट. 4-5 मतलब ये 25 नंबर पे कैसे आए? सर मतलब इन जनरल ऐसे रिकमेंडेशन किया था और मैंने गोल सेट किया था कि हर सब्जेक्ट का 4-5, और शायद आपने फर्स्ट क्लास में रिकमेंड भी किया था कि 4-5 मार्क्स होने चाहिए हर उसका. हाँ हाँ ठीक है. तो एंथ्रो में ज्यादा टाइम लग रहा है. इट इज कंज्यूमिंग 8 hours पर डे. यस सर, आज जैसे 8 hours हो गया और टेस्ट लिखना था पर वो लिख नहीं पाया. अभी लिखूंगा तो ऑलमोस्ट पूरा दिन खत्म हो जाएगा. ओके, आई थिंक यार आई टच्ड अपॉन दिस लास्ट टाइम आल्सो. मतलब ये चीज यार आपको इस चीज में ना
जो टेस्ट वाला एस्पेक्ट है ना, पहली बात तो 25 नंबर ऐसे मन में ऐसे सोच के मत बैठो कि यार 25 पे मुझे टच करना है, कोई सेंचुरी हाफ सेंचुरी वाली कोई बात नहीं है। टारगेट ये होना चाहिए आपको, सारी चीजें करनी है, सब पढ़ना है, उसके हिसाब से आप टेस्ट सीरीज करते हो। बिकॉज फॉर मी, अगर मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ पढ़ना है तो इतनी मोटिवेशन नहीं आती है, बट मुझे पता है कि यार सैटरडे को या संडे को टेस्ट लिखना है, तो वो 5 दिन पढ़ने का एक मोटिवेशन मिल जाता है। तो टेस्ट लिखने का एक आइडिया ये होता है। दूसरा आइडिया टेस्ट लिखने का ये होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स यू हैव टू राइट योर टेस्ट। तो इसलिए इट इज नॉट अबाउट, इट इज नॉट कंटिंजेंट अपॉन नंबर एज सच, बट इट इज कंटिंजेंट अपॉन कि आप ये दो चीजें कर पा रहे हो या नहीं। दैट इज पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब आप कैसे अब सारी चीजें करोगे, तो आई थिंक जब मैंने पहली क्लास में बताया था, या जो मैं जनरल बोल रहा था कि आप वीक वाइज चीजें ब्रेक करके चलो, ऑफ करंट अफेयर, ऑफ योर ऑप्शनल एंड योर जीएस। आई डोंट थिंक आई हैव टू गो टू दैट टाइम टेबल डिस्कशन अगेन, है ना। तो वो तो आपको पता है। उसमें अब आप ये जरूर कर सकते हो कि आप अपना, अगर आपको 8 आवर्स लग रहे हैं इन योर ऑप्शनल, तो डोंट स्पेंड दिस टाइम मच। आप 6 घंटे बाद जीएस में लग जाओ। अगर यू हैव टू डू दैट हार्ड स्टॉप, डू इट। बिकॉज जो इनइफेक्टिव टाइम तो उतना ही है ना यार, मतलब आप टाइम उधर ज्यादा दे रहे हो तो आपकी जीएस कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो मैं वही करता था कि यार जो मेरे 6-7 घंटे के जो स्लॉट्स है वो उतने ही रहते थे, और उसी में मैं पढ़ता था। जब मैं ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ तो फिर मैं जीएस का नहीं सोचता था, और जितना जीएस पढ़ लिया उतना फिर उतना ही वो उतना ही रहता था। रिमेनिंग आप नेक्स्ट डे लो। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, देन यू माइट हैव टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, दैट इज वन कंसर्न। और you have to slightly be more productive in your studying, और थोड़ा और रिड्यूस करना पड़ेगा in terms of जो टाइम लग रहा है लर्न करने में या रटने में। तो वो टाइम तो यार आप 8-10 घंटे अगर एक ऑप्शनल को दे रहे हो, तो इनइफेक्टिव आपका पूरा दिन ऑप्शनल ही जा रहा है, which cannot be done। अगर बहुत ज्यादा ये इशू हो रहा है ना, तो डू वन थिंग, आप दिन की शुरुआत जीएस से करो, और सुबह के 2-4 घंटे 6 घंटे जीएस को दे दो, फिर ऑप्शनल पकड़ लो। क्योंकि आपको लगता है कि जब मैं ऑप्शनल उठाता हूँ तो फिर ऑप्शनल करता रह जाती है। तो डू जीएस फर्स्ट, और उसको पहले करो, और उसमें थोड़ा टाइम दे दो, जिससे कि आपको ये ना लगे कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा अनप्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव डे रह गया। ओके सर, आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यस सर, काफी सॉर्ट हो। ठीक है, एनीथिंग एल्स? हेलो सर। यस सर, ये नेक्स्ट क्लास के रिगार्डिंग है सर। हाँ, लाइक एथिक्स, अभी आज का क्लास थोड़ा सा पैसिव लग रहा था सर, वन वे ही हो रहा था। हाँ। तो क्यों ना हम लोग अगले क्लास में थोड़ा एक्टिवली करें। आप कुछ 4-5 केस स्टडी हमको पहले ही भेज दे तो हम लोग हमारे आंसर्स रेडी रखेंगे। थोड़ा थियरी आधा पार्ट और केस स्टडी आधा पार्ट हो तो सर अच्छा लगेगा। यार इंटरेक्ट तो पूरा करो। मैं तो हर पार्ट के बाद बोलता हूँ किसी को कुछ इंटरेक्ट करना है तो करो। तो इफ यू वांट, मैं ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उनके क्वेश्चंस में शेयर कर दूंगा ग्रुप पे कपल ऑफ डेज बिफोर द क्लास। तो आप उसके बारे में सोच के आ सकते हो। बट इट्स द डिस्कशन विल बी लार्जली नॉट विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक्स इन पर्टिकुलर। मतलब अभी तक आपने देखा होगा कि मैं टॉपिक्स पे ऐसे डिस्कस नहीं करूंगा कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है या लेट्स से एटीट्यूड क्या होता है। इट विल बी लार्जली कि एथिक्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आउट ऑफ 4 जीएस पेपर, एथिक्स इज द वन जिसकी अप्रोच के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एटलीस्ट इट वाज फॉर मी, आई डोंट नो आप लोगों के साथ क्या है। तो हम अप्रोच ही डिस्कस करेंगे यार। और उस केस में जब हम डिस्कस कर रहे होंगे, आई विल गिव यू टाइम देन ऑल्सो, जो भी मैं क्वेश्चन या टॉपिक या केस स्टडी डिस्कस करूंगा, तो आई विल गिव यू टाइम देयर ऑल्सो कि आप पढ़ लो, सोच लो। क्योंकि अप्रोच डिस्कस करने में ऐसा हमारे पास टाइम का कोई वो कंस्ट्रेंट नहीं होगा। चाहे 4 केस ही डिस्कस करें, बट अप्रोच ढंग से कर लेंगे, जिससे कि आप 5वीं केस खुद से ढंग से कर सकते, है ना। सॉल्विंग मोर केसेस इज नॉट द आइडिया। हाँ सर, वो मतलब प्रीवियस 5-6 साल में जो जिस तरह से केस स्टडीज पूछ रहा है, जैसे यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि कुछ वो डिवाइड किया है जैसे 5-6 सेक्शन में कि इस एरिया से पूछ रहा है। अगर आप ऐसा कुछ हमको दे सके अगली बार तो। हाँ ठीक है यार, मैं थोड़ा बहुत उसमें इनकॉर्पोरेट करके आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट। और इफ पॉसिबल मैं वो केस कुछ या क्वेश्चंस
या आइडियाज आप लोगों से ग्रुप पे पहले शेयर करवा दूंगा, सो दैट यू कैन कम प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू बाय थिंकिंग अबाउट इट, और किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो वो कर सकते हैं. विल डू इट, नो प्रॉब्लम. श्योर सर, थैंक यू सर. ठीक है, ठीक है, सही है यार. ऑल द बेस्ट. और ऐसे ही लगे रहो एंड आई होप इट विल बी. थोड़ा हेल्प हो रहा है सेशन से? यस सर. Yes, sir. यस Yes. सर. ठीक है, कॉन्फिडेंस मिलता है सर सब्जेक्ट्स को लेकर ना. ठीक है, ठीक है यार. फिर लेट्स कॉल इट अ डे नाउ. ठीक है. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक्स सर.